अपने फादर को ग्रेनेड इंजरी होते हुए देखा है, पूरा चेहरा बिगड़ते हुए देखा है, बट आई नेवर सीन माय फादर क्राइंग। फुल फ्लेज्ड वॉर ब्रोकन बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। लुक एट द क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, 11 दिन की लड़ाई के अंदर एक देश के 2 टुकड़े करके एक नई कंट्री हमने पैदा कर दी। 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता यूपीएससी चेयरमैन कौन है। वहां से जवाब है, सर मैं प्रोस्टिट्यूट बोल रही हूँ। ये वन ऑफ दोज केसेस था जहाँ पे मेरे को 2 सेकंड लगे, है ना। मैं प्रोस्टिट्यूट, मैं छाती ठोक करके बोलूंगा लाल किले में खड़े होके कि दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू मी। जहाँ पे मतलब है ना, मैं 2 सेकंड मुझे लगे, नहीं तो मैं लगाता नहीं 2 सेकंड जल्दी बोलने में, ठोकने में, बताने में, जवाब देने में। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कितने सारे लोग हैं जिनको बुलेट इंजरीज लगी हैं, तो बॉडी में अभी भी कैरी कर रहे हैं। वी हैव डन सो मच फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लिटिल, दैट नाउ वी आर क्वालिफाइड एंड कैपेबल टू डू एनीथिंग विद नथिंग। Hi, guys. Welcome to the Brown Guy podcast. This is our first episode, and we are very happy to be shooting this in Himachal Pradesh. Our guest for today is someone who's very, very special. I have personally learned a great deal from him in my life just with a couple of hours of interaction. After spending close to 2 decades in the Indian Army, this gentleman that we are going to speak to very soon has started his own, well, I would say the world looks at it as an academy or a coaching center. But for him and from his ex students who have been trained from here, it is more like a monastery, a temple. It's a mandir for them, right? So, this is actually a man who needs absolutely no introduction whatsoever. You already know him. People refer to him as Mama Sir. And before coming here, I really did not know what did that mean and how did that name come to be. But now I'm extremely clear as to why do people call him that. He's a healer. He's a trainer, he's a coach, and above everything else, he's an absolutely gem of a person. And I am extremely lucky to be talking to him today. Our guest for today is Colonel Rajiv Barwan. Please enjoy the show. Rajiv sir, thank you so much for meeting us today. मैं एक चीज I'll tell you before we start interacting with you, and lots to ask you. Before I came here, I have a very good friend. She's like my younger sister. She lives in Pune. I would want to name her Gargi, a very, very special younger sister of mine. She looks up to you big time. Okay. Yes, big time looks up to you, sir. God bless her. Thank you, sir. Send my best wishes and love to her. She'll be very happy. I will do that, sir. Yes. So before coming here, when I told her, ki Gargi, yaar, pray for me because I'm going to meet Colonel Saab and it's going to be my first podcast ever, right? And this is with such an accomplished individual. He said, ki bhaiya, आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है. So let me start with that. And the reason I said that is because जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, it's been I think couple of hours that we are sitting here, and whatever has happened in these couple of hours, the interaction with everyone who's a member here, who's a student here, I'm sorry, and whatever they have learned through their interactions with you, through whatever training that they go through here, has been absolutely amazing. One more important thing that I have noticed since the time I've come here is people are so open, they have so much to share, and they are sharing so freely without any judgment. This is something which is missing big time in the areas where I come from, or I would say most of the society doesn't really have this. So I want to understand from you, sir, this entire boot camp, I'll call it, and this entire process of making people the best version of themselves. We want to understand from you, and would love to hear some of the success stories that you've shared with us of some of the students who've dealt with their worst demons, overcome their greatest fears, and now are accomplished individuals themselves. Okay. 3 things. ये मैं जवाब बाद में दूंगा, बट पहले 3 चीज मैं भी बताता हूँ. जी सर. पहला, यार, family and friends never say thanks. So it's my happiness that you are home. Thank you, sir. 1. गार्गी ने जो बोला, मुझे नहीं पता उसने क्यों बोला आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, बट चेंज तो एक ही आदमी करेगा, and that is you. Yes, sir. ठीक है, but that means a lot, and I have such a respect and faith coming from someone. And तीसरी चीज है ना, बूट कैंप जो भी यहाँ पे हो रहा है, मेरे लिए तो घर ही है ना, is my home. So ये जो हमारा बूट कैंप है सर, जो हमारा घर है, I'm happy you said हमारा. इतना तो सीख गया तुम अगले पिछले 1.5-2 घंटे के अंदर कि हमारा, yes, not मेरा. बिकॉज ऐसी फीलिंग ही आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, जब से मैं यहाँ पे हूँ. जैसे मैंने कहा सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए हैं, लेकिन ऐसा अपना सा लग रहा है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे भी इतना कुछ शेयर करने का मन कर रहा था आपके साथ, जो मैंने किया भी, एंड जो इन लोगों को भी मैंने शेयर करते हुए देखा, ये बहुत मिसिंग है
आम लोगों की ज़िंदगी में कोई ये करता नहीं है ज़्यादातर। ये क्या एक प्रोसेस है या फिर ये एक कैसी ट्रेनिंग है जिससे कि लोग यहाँ पे जो आते हैं अपने मतलब बिल्कुल वियर्ड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बट व्हेन दे आर हियर दे आर ऑलरेडी जस्ट बाय बीइंग हियर वो लोग एक 90-95% ऑलरेडी वो लोग हील्ड हैं, एंड फ्रॉम हियर व्हेन दे गो दे बिकम वो अपने आप के बेस्ट वर्जन्स बन जाते हैं। हाँ। सो हम ये कैसे कर रहे हैं, मतलब हाउ आर वी डूइंग इट? एंड मैंने उसका एक ट्रेलर देखा अभी एंड मैं खुद आई वाज वेरी मूव्ड बाय इट, बट ये कैसे हम कर रहे हैं एंड वी वुड वांट टू नो मोर फ्रॉम यू। यस, जजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, इससे हर एक आदमी को डर लगता है कि वो मेरे को असेस करेगा, है ना। बच्चे पेरेंट्स से परेशान है कि भैया पेरेंट्स हमारे को जज करते हैं। पेरेंट्स भी परेशान है कि बच्चे को ऐसा बोलेंगे तो बच्चे है ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सरकार है, उसको डर है कि भैया ना जनता भी उनको जज करेगी, 5 साल होने वाले हैं, ठीक है। हर आदमी को जजमेंट का अफेयर है। कुदरती तौर पे भगवान ने यार हर एक को अलग तरह से बनाया है। कोई हाइट में छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। किसी को अंग्रेजी कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है। कोई कमज़ोर बैकग्राउंड से आता है, किसी के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, किसी का वजन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, किसी का कम्प्लेक्शन डार्क है। बट यार देखो, मैं ये कहता हूँ मतलब कि एक्सेप्टेंस है। जो मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को, बॉयफ्रेंड है, बाल उड़ जाए तो आपके ना रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। बट अगर फादर बॉलर्ड है तो वो बहुत है ना स्मार्ट दिखाई देते हैं, उसमें कोई नहीं है, वहाँ एक्सेप्टेंस लेवल हाई है, ठीक है। जजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी, लोग एवरी वन हैज़ एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। जजमेंट देना बहुत आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि जब अपने ऊपर बात आती है तो वी फाइट एन टूथ एंड नेल, एडी चोटी का जोर लगाते हैं टू प्रूव कि मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ, और 100,000 रीज़न देते हैं। बट जब दूसरे पे बात आती है ना तो आदमी 1 सेकंड भी नहीं लगाता, फटाक से फतवा जारी करता है जजमेंट कि फद्दू है, उसने ऐसा किया, वो खराब है। मतलब किसी का कोई कंडक्ट रिलेटेड हो, किसी ने कोई डायलॉग दिया, एक छोटा सा वर्ड भी आप कहीं लिख दो, उसमें भी लोग जजमेंट देते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को लिखने का शौक है ना। तो एक बार जैसे लिंक्डइन पे किसी ने लिखा और फिर किसी और ने लिखा कि आप ये जो कैप्शन लिखते हो बहुत बड़े बड़े लिखते हो, मत लिखो। मैंने कहा आप मत पढ़िए, मत पढ़िए ना, नोबडी हैड एक्सटेंडेड इनविटेशन टू यू, बट किसी ने तो जज किया मुझे। फिर किसी एक और ने लिखा कि आप जो लिखते हो ना एज पर द साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, अभी कैपिटल्स में जो लिखते हो इसका मतलब ये है कि यू आर वेरी लाउड। मैं गुड। तो समबडी अगेन हैड एन ओपिनियन अबाउट मी कि ये ना आप लाउड हो। यार मैंने मैसेज में कोई छोटी सी सिंपल सी अच्छी सी बात बताने की कोशिश की थी, ठीक है। जब तक लास्ट डॉट खत्म नहीं होता तब तक लिखा मैंने, और बहुत भाव से लिखा था। उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, सिर्फ उस आदमी को एक चीज़ समझ में आई कि क्या, कि ये बहुत लाउड होता है, दिस इज नॉट करेक्ट टू राइट इन कैपिटल्स। मैंने कहा ओके गुड, यू हैड गिवन मी रीजन, आई विल राइट ओनली इन कैपिटल्स। और मैंने आज तक चेंज नहीं किया। आप छोड़ दीजिए पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, बट वाई शुड आई चेंज माई सेल्फ। मैं खुद को तो भैया एक्सेप्ट करूंगा, आई एम नॉट गोइंग। एंड ये इतनी बड़ी बीमारी है ना। अब मैं समझाता हूँ लोगों को, इतना डर है लोगों को जजमेंट को लेकर के कि वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं, पड़ोसी ऐसे बोलते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा। तो हर आदमी बहुत डरा हुआ है, और जब तक डरा हुआ है ना आदमी, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता और अच्छे काम भी नहीं कर पाता। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उनको कि एक बार एक हस्बैंड और वाइफ थे, है ना, और दोनों घोड़े के ऊपर, घोड़ा उनके पास में था अच्छा खासा, एंड बोथ वर हेल्दी, बिल्कुल ना तगड़े थे बिल्कुल। तो वो लोग जा रहे होते हैं तो हस्बैंड वो कहता है मेल शोविनिज्म है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, घोड़े पे हम बैठेंगे, ये बड़ी औरत है पैदल चलेगी। तो बैठता है उसके ऊपर। वो लोग थोड़ा रास्ता तय करते हैं, आगे दुनिया मिलती है। कुछ लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं कि ब्लडी फद्दू गई का, कहता है ना, ना मर्द आदमी, बढ़िया ना, कैसा मर्द है, खुद घोड़े पे बैठा है और बेचारी लेडी पैदल चल रही है। तो बात दिल में लग जाती है कि यार मेरे को किसी ने जज कर लिया। तो फटाफट स्टैंड चेंज करता है। ये नहीं बोलता कि भाई ऐसे गलती, कहता है बहुत देर हो गया, मैं भी बैठे बैठे थोड़ा थक गया हूँ, ऐसा करो तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। कारण नहीं बताता, तो वाइफ को ऊपर बिठा देता है, खुद पैदल चलता है। थोड़ा रास्ता तय करते हैं, फिर दुनिया मिलती है, फिर बताते हैं उसे, कहते हैं बड़ा फद्दू आदमी है यार, नामर्द नहीं है तो नपुंसक है, बिल्कुल डरता है औरत से, जोरू का गुलाम है। घोड़े पे देखो मतलब क्या रानी की तरह बैठी हुई है लेडी, और खुद बड़ी बेवकूफ आदमी डरपोक पैदल चल रहा है। फिर चुप जाती बात, क्या लोगों ने जज किया, यार तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो कहते मैं भी थक गया हूं, ऐसा करते हैं दोनों बैठ जाते हैं, घोड़े में काफ़ी जान है, दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुनिया से फिर वास्ता होता है, फिर 4 लोग मिलते हैं वहाँ पे। फिर एक कहता है यार एक काम करो, मिसेज मेनका, अपना है ना मेनका गांधी जी को फ़ोन करो, और एनजीओ वगैरह में फ़ोन करो, क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल। एक घोड़ा है, उसके ऊपर 2 भारी भरकम लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बिल्कुल शर्म नहीं आती, केस ठोको इनके ऊपर। तो फिर डर जाता है, बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहता है ऐसा करते हैं नीचे उतर जाते हैं। तो दोनों नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। कहते हैं पैदल चलते हैं दोनों। तो दोनों पैदल चलते हैं,
दुनिया फिर टकराती है, दुनिया तो हर कदम पे है। फिर एक कमेंट आता है वहां से, कहता है यार है ना, किसी ने ठीक कहा है, दुनिया में ना एक मूर्ख ढूंढो 1000 मिलते हैं। अच्छा खासा कट्टा घोड़ा है, पर 2 मूर्ख हैं, बड़ी है ना, घोड़े का कोई फायदा नहीं, दोनों पैदल जा रहे हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। नाउ इज कंफ्यूज कि अब क्या करना है। तो कहते हैं अब तो और कोई ऑप्शन बना ही नहीं है ना। कहता है एक काम करते हैं, घोड़े को हम ही अपने ऊपर बिठा लेते हैं। तो घोड़े को अपने ऊपर बिठा लेते हैं, दोनों उठा करके चलते हैं। अभी दुनिया फिर मिलती है। तो दुनिया है ना, अभी 4 की बजाय 40 लोग आते हैं कमेंट देने। कहता है यार अब 50 मतलब देखा है, घोड़ा भी इंसान के काम आता है। कहता है आज पहली बार देख रहे हैं कि ना गधे घोड़े को उठा के ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है यार, इतनी बड़ी दुनिया है ना, किसी हिसाब से खुश नहीं होगी। इफ यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन इन द वर्ल्ड, है ना, आप ऐसी जिंदगी पास कर रहे हो, आपसे जी नहीं जा रही, ठीक है। दुनिया से वैलिडेशन मांगने की बजाय है, दुनिया को खुश करने की बजाय आप खुद को खुश रखना सीख लो। एक घर में 4 लोग हैं, वाइफ हस्बैंड से नाराज है, कारण चाहे जो भी हो। हस्बैंड बाहर से आता है, चिक चिक करता है, वो वाइफ से गुस्सा करता है। बच्चे पापा मम्मी से गुस्सा हैं, ठीक है, और बच्चे हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं। एक घर में 4 लोग हैं, उनकी भी आपस में अनबन है, और ये हर दूसरे घर की कहानी है आज की तारीख में। बहुत रेयर सीन है, लोग बोलते हैं बहुत रेयर, आज ना इतने सालों में ये निकलने वाला है, आज सूर्य ग्रहण निकलेगा, इतने सालों में कुंभ लगेगा, इतने सालों में। अरे उसको छोड़ दो, मैं तो नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, है ना। बहुत रेयर साइड है कि जहाँ पे लोग घर पे टेबल पे बैठ के इकट्ठे खाना खाते हो, सिर्फ डेकोरेशन के काम आती है टेबल आजकल। अदरवाइज ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो है ना, इतनी काबिलियत तो एक टेबल भी रखती है जिसमें कोई जान नहीं है ना। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो डाइनिंग टेबल ऑल्सो हैज द सुपर पावर टू यूनाइट फैमिलीज, टू बाइंड फैमिलीज, ठीक है। ये भी बहुत रेयर साइट है जहाँ परिवार इकट्ठे बैठ के, लेकिन नहीं, कोई शादी होगी तो फिर उस समय इकट्ठे फोटो खिंचाएंगे, ग्रुप फोटो, सिर्फ सेल्फी तक रहेगी लाइफ। नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं आप रह लेते इस तरह से। वैलिडेशन की परवाह मैं तो बिल्कुल नहीं करता। इफ यू रियली वांट टू सी द एक्सट्रीम एग्जांपल, यू आस्क माय स्टूडेंट्स, बैच वाइज पूछ के देखो हर एक से, मैं मौका देता उनको, मैं काम करूँ तुम लोग, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो मैं खुद नहीं फॉलो करता। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी काबिलियत रखता है जो है ना मेरे को इरिटेट कर सकता है, एंड मैं वो खड़ा है वहां पे शीशे में, कर्नल बैरवान। एक ही आदमी मेरे को दिक्कत दे सकता है। और खुश रहने के लिए भी आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैंने खुश रहना है, यू लीव मी अलोन हियर इन द जंगल, एक किताब, ठीक है, एंड कपल ऑफ स्टफ जो मुझे चाहिए, वन और एनिमल डॉग विद मी, आई एम मोर देन हैप्पी। मैं ना साइलेंस में भी आई फाइंड माई हैप्पीनेस। मैं इनको ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, जितना कुछ साम दंड भेद जो ट्राई कर सकते हो कर लो, ट्राई करके देखो। एक बारी बातों में क्या रखा है, जितनी गालियां आती हैं दबा के गाली दो मेरे को, ठीक है। जो समझ में आता है, जूता चप्पल बेल्ट झाड़ू, जो समझ में आता है उठा लो, दबा के मारो मेरे को। मैं यहीं बैठा हूँ, 1 घंटे तक मूव नहीं करूंगा। और 1 घंटे के बाद में जो करना है, रील बना लो, खींच लो, कपड़े फाड़ दो, जो करना कर लो। जो नाराजगी अपने पेरेंट्स से, खुद से, दोस्तों से, बॉस से, सोसाइटी से, मेरे ऊपर ट्राई करके देखो एक बारी। और 1 घंटे के बाद में बोलो सर क्लास लेके दिखाओ, तुम देखना क्या शिद्दत से क्लास लूंगा। एंड आफ्टर दैट 1 hour ऑफ ड्रामा फ्रॉम योर साइड, आई स्टिल लैंड अप टेकिंग द बेस्ट क्लास ऑफ माई क्लास ऑफ लाइफ की सबसे बढ़िया मोटिवेटिंग क्लास लूंगा। इतनी शिद्दत से लूंगा, और तुम्हारे को ना मेरी आवाज में भी महसूस होगी, मेरी आंख में भी दिखाई देगा, मेरे कंडक्ट में भी। और जब तुम्हारे बोलूंगा ना स्माइल किया, गाइस आई लव यू, रोगे मैं तुम लोग। बोला कमाल है यार, बंदा अभी भी कह रहा है आई लव यू, ट्राई करके देखो एक बारी। तो वैलिडेशन है ना गंदी चीज है, और हर आदमी जज कर रहा है एक दूसरे को। हाँ। इतनी बड़ी दुनिया है, आप क्यों इस वहम में जिंदा हो कि सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। खुद को तो खुश रहना आता नहीं आपको, हर बात में शिकायत, हर बात में रो रहा है। खुश रह लो यार। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप खुद बताओ जयदीप, आप घर पे अपनी मदर को, अपने आसपास 4 लोगों को जो आपके क्लोज हैं, आप उनको खुश देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? मैं उनको बहुत खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। आप उनको मोटिवेटेड देखना चाहते हो या डिप्रेस देखना चाहते हो? मोटिवेटेड। एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप खुद ही खुश रहना नहीं जानते, आपको लगता है आप अपनी मदर को या किसी को भी खुश रख लोगे लाइफ में? नहीं। तो वहम क्यों पाल रखा है? एक आदमी ने कुछ बोल दिया, पूरा दिन खराब कर दिया, यार उसने मुझे ये बोला था, आज बॉस ये नाराज है, वो नाराज है। साल में 365 दिन है काम करने के लिए। 365 दिन के बाद में है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अप्रेजल लिखा जाता है ना। और हालत इतनी बुरी है कि आदमी 365 दिन सिर्फ इसलिए काम करता है कि वो रिपोर्ट अच्छी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। फौज में भी ऐसे 365 दिन है। आई यूज टू राइट एशियर ऑन डे 1 अप्रेजल, ये आज साल का पहला दिन है, लिख दिया द बेस्ट आउटस्टैंडिंग चिट यू विल एवर गेट। अब तुम्हारे पास 1 साल है, मैं क्यों काम करूं? मैंने तो लिख दिया बहुत अच्छा तुम्हारे बारे में। 1 साल है, कर लो काम टू लिव अप टू व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू। मौका आप दोगे मुझे रगड़ने का?
ठीक है, अदरवाइज आई राइट ओनली द गुड थिंग्स अबाउट यू। राइट। और 1 साल मेरे पास में भी है टू ट्रेन यू गाइस। 1 साल के बाद में मैं आपको जज करूंगा, ये अच्छा नहीं है, इसने ये खराब किया था। तो 1 साल में अपने क्या झक मार रहा था एज ए कमांडर। 1 साल में मैं तो पूछता था, मैं मेरे को बताओ किधर कमजोरी है, फिजिकली वीक हो, लिखने पढ़ने में कमजोर हो, कम्युनिकेशन में कमजोरी है, या कोर्स क्लियर नहीं हो रहा, जगह बता दो। तो शुरू में थोड़ी इनिप्शन थी, नया आदमी आया, पता नहीं क्या बता रहा है। बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, तू फिजिकली कमजोर है, तेरे को ना बाय द एंड ऑफ द ईयर कड़क बना दूंगा। तेरे को अगर बोलने में कमजोरी है, डर लगता है, मैं तेरे को सांड बना दूंगा। मैं तेरे को अगर कोर्स क्लियर नहीं हो रहे तो मैं उसमें पढ़ाई लिखाई में तेज बना दूंगा। प्रॉब्लम बता दो, योर प्रॉब्लम इज माइन। वाओ। तो लोग सलाह देंगे, है ना, साथ नहीं देंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, कमेंट देना बहुत आसान काम है, एंड दिस द मोस्ट फद्दू थिंग, यू नो। कमजोर आदमी है, वो दूसरे में हमेशा कमी निकालेगा। और मैं क्या कहता हूँ लोगों को, आप कितना ही जोर लगा लो, है ना, नजर का इलाज है, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। नहीं। बेसिक फितरत कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, एक आदमी नालायक है, जिसने कमेंट देने वो कमेंट ही देगा, है ना। इट्स समथिंग लाइक अनियन, प्याज। या प्याज को आप कर्नाटक ले जा करके काटो, क्या निकलेगा आंख से? आंसू ही निकलेंगे। पाकिस्तान ले जाके काटूंगा तो? आंसू ही निकलेंगे। इंग्लैंड निकाल ले जाके? आंसू ही निकलेंगे। हाँ, तो उसका बेसिक नेचर है। या ठीक है, तो इसी तरह से फद्दू आदमी है। दुनिया का क्या है, कमेंट देती रहेगी, आप इग्नोर करना सीखो, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है, एब्सोल्युटली। रादर देन सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स ना, आप अपने ऊपर काम करो, खुद खुश रहना सीखो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है, वाओ। मैं तो यही फॉलो करता हूँ यार। ठीक है, इसलिए इधर आके बैठा हूँ, है ना, कि ढूंढने में जोर लगे लोगों को। दुनिया के पास जाना ही नहीं है, जरूरत होगी तो दुनिया में से कुछ लोग मेरे को खुद ढूंढ लेंगे। ये आपने बहुत क्लियरली कहा था कि एक्चुअली ये जगह ऐसी है जहाँ पे कि इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, रास्ता है इसके आगे जाता ही नहीं है। दिस इज द डेड एंड, रोड एंड्स वेयर आई एम सिटिंग। या अरे पूछा था किसी ने, यहाँ क्यों बैठते हो आप यहाँ पे, यहाँ रोड ही नहीं आगे, या आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ आज। है ना। सो जो ढूंढना चाहता है, द वन हु इज सीकिंग यू विल ऑटोमेटिकली लैंड अप हियर। किसी ना किसी तरीके से व्हाट यू सीकिंग इन लाइफ इज सीकिंग यू। सीकिंग यू। अब जो ढूंढ रहे हो ना, वो आपको ढूंढेगा। हाँ। एक आदमी को रोने की आदत है ना, लाइफ 15 मौके देगी। हाँ। ये आदमी बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता है रोने में, टैलेंटेड आदमी, बहुत रोता है, इसको ढूंढते हैं। अब प्रॉब्लम पे फोकस करके देखो, प्रॉब्लम खुद ढूंढेंगे आपको। व्हाई? बिकॉज यू आर सो इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम। या मेरे प्रॉब्लम दिखाई देती है, मैं कहता हूँ बॉल्स, है ना। एक आदमी पूरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम नहीं देखेगा, उतनी तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में देखे होंगे अभी यहाँ। मैंने देखिएगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स सुने, इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे, और इस लेवल के प्रॉब्लम्स देखे जहाँ पे कि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स किसी नॉर्मल इंसान के पास कोई लेके जाए, उस इंसान के पास सॉल्यूशन छोड़ो, वो समझने में ही वो समझ ही नहीं पाएगा वो एक्चुअली। छोटा सा बच्चा है जिसने तुझे बोला 10th में है हाँ। कि 4-5 लाख रुपए लगा दिए पेरेंट्स ने, हाँ। 4 साल हो गए, कहता मेरे में कोई चेंज नहीं आया। भाषा भी मेरी खराब थी, जिम्मेदार भी मैं नहीं था, गाली भी मैं देता था, कोई काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं। और पेन्स का एग्रेसिव चाची ये तोड़ता था। कहता 14 दिन में मैं तो आदमी बन गया ना। हाँ। नहीं, एक्चुअली एक और चीज जो मैंने देखी है कि इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं लाइफ में दब जाती है बिकॉज ऑफ समथिंग जिसके बारे में अभी अभी लोगों ने बात करना शुरू किया है, बट फिर भी खुल के बात नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, विच इज बैगेज। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये चीज कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी मैंने बहुत देखी है। मैं लगभग 14-15 साल का था, जिस समय पे एक दिन सुबह मेरे पिताजी आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ ट्रैक के लिए, तू आना चाहता है मेरे साथ? और मैंने कह दिया फॉर वॉट एवर रीजन, मैं बच्चा था, कि नहीं पापा आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। एंड उसके बाद मेरे पापा वापस ही नहीं आए, ही नेवर केम बैक। लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि कुछ हुआ एंड वी लॉस्ट हिम। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मतलब एक ऐसे एक्सटेंट तक कि मैंने शायद उससे पहले बिजली का बिल भी देखा नहीं होगा, जिंदगी ऐसी चल रही थी। एंड उसके बाद सडनली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पे से छत उड़ गई। अब बैगेज वहां से क्रिएट होना शुरू हुआ एंड वो कहीं ना कहीं सर्टेन थिंग्स मैं खुद उससे डील कर पाया, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक भी डील नहीं कर पाया हूँ। एंड मुझे कोई से शर्म नहीं इसको एडमिट करने में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम्स है वेयर अ पर्सनल लॉस becomes their heaviest baggage in their world, in their life. And people कहीं ना कहीं they start to blame themselves कि यार अगर मैं चला जाता उस दिन तो मैं कुछ चेंज कर लेता। बट सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, इस तरीके की चीज हम नहीं चेंज कर सकते। एंड जैसे मैंने कहा कि इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत लोग को होता होगा। इस चीज को, इस बैगेज को हम कैसे, इसको पहले तो हम फेस कैसे करें, इसको हम समझे कैसे, एक्सेप्ट कैसे करें, एंड इसके बाद भी हम अपने आप को प्यार से देखना या प्यार करना खुद को हम कैसे सीखें। The answer lies in it's very unfortunate what happened in your case, you know.
एंड ये एक वो चीज़ है जो मैं सबको समझाता हूँ बच्चों को, मैं नो पेरेंट्स के साथ में जो बदतमीजी कर रहे हो आप, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है लाइफ के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग इज है ना टू सी योर पेरेंट्स ग्रोइंग ओल्ड। सीइंग देम एजिंग। हाँ। जब चेहरे पे हाथ पे झुर्रियां पड़नी शुरू होती है ना, बहुत पेनफुल थिंग है, बिकॉज यू नो व्हाट इज कमिंग या फॉर यू। मैं पूछता हूँ उनसे, मैं अगर सूरज जिस दिन डूब जाएगा, सूरज जब डूब जाता है शाम को, तो क्या होता है उसके बाद? तो लोग कहते हैं सर अंधेरा। गुड, ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। पेरेंट्स जिस दिन चले गए ना लाइफ से, उनका हाथ हट गया सर पे, इट विल बी ऑल डार्क इन योर लाइफ। ट्रू। यू एक्सपीरियंस दैट? यस। यू सेड की छत चली गई, ऐसा लगा। फैक्ट। करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैगेज, हर आदमी है बैगेज कैरी कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लेसन आई एम पार्ट। ऑलवेज ट्रेवल लाइट इन लाइफ, ऑलवेज ट्रेवल लाइट इन लाइट लाइफ। इन लाइफ। दो चीजें बताता हूँ, प्रॉब्ली यू विल फाइंड योर सॉल्यूशन। टू थिंग्स है ना, वन यू सेड बैगेज कैसे कैरी करना है। वन ऑफ द फर्स्ट लेसन है ना, बैगेज हर आदमी कैरी कर रहा है। यू आर 14 and a half when you lost your parents? Yeah. My father. There is someone who's sitting in the class and who had lost his parents when he was just 4. तो उसने कभी देखा नहीं है, आपने कम से कम 14.5 साल देखा। एंड देयर इज समवन है ना जिसने दोनों पेरेंट्स को नहीं देखा, वो भी बैठा है। सो इट इज रिलेटिव थ्योरी। Yeah. आपकी तकलीफ तब तक बड़ी है जब तक है ना वो 4 साल वाला नहीं आया, और 4 साल वाली तकलीफ तब तक बड़ी है कि जो 4 महीने का था एंड बोथ पेरेंट्स पास्ड अवे, एंड उसका रिलेटिव्स में रहा एंड जर्नी वाज नॉट इजी। लोगों ने जज किया, डांटा पीटा, है ना, एंड इट वाज नॉट गुड बिकॉज डिपेंडेंट था, कुछ चॉइस नहीं थी जाने की। सो उस हिसाब से तो किसी और की तकलीफ आपसे ज़्यादा बड़ी है ना। इट्स समथिंग लाइक कि आपकी तकलीफ तब तक बड़ी है जब तक आपने अपनी से बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखी। नहीं देखी आपने। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन, प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती हैं। वन इज कंट्रोलेबल एंड सेकंड इज नॉट, है ना, विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो कंट्रोलेबल है वो तो हम कर सकते हैं इलाज, है ना, वजन आपका ज़्यादा कर लो कम, एक्सरसाइज करके वो स्टॉपिंग है। पढ़ाई में फेल हो गए, कर लो, लगा लो जोर। बट समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, जैसे आपके केस में हुआ, एंड आपको लगता है काश मैं उस दिन गया होता तो, है ना, कभी बार बार रिलैप्स होता है, वो चीज़ें दिमाग में आती हैं। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपकी लाइफ में आज के बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की मैं, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, महसूस करना, फिर बताना मुझे, ठीक है। नंबर 1, आपको एक वाटर बॉटल दे रहा हूँ, ये एक हाथ चूज कर लो, लेफ्ट और राइट। राइट। और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन पर्सन बहुत लोगों को बताया, मे बी है ना, मेनी पीपल विल गेट देयर आंसर थ्रू दिस। राइट, अपने हाथ में ले लो। अभी पहली चीज आपने क्या किया, अपने कंफर्ट के लिए इसको यहां पे रख लिया। दिस रूल नंबर 1, आप इसको कहीं पे बेस पे टच नहीं करेंगे, अपने हाथ में रखना है। यस, दिस ऐसे रखेंगे आप, ना टेबल पे रख सकते हो, ना कुर्सी पे, ना अपनी बॉडी पार्ट पे, ठीक है, हमेशा ऐसे रखेंगे। दूसरी चीज, 24 घंटे कैरी करेंगे ऐसे ही। हाँ। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब, टॉयलेट जाएंगे तब, नहाते समय, धोते समय, कपड़े बदली करते समय, ड्राइव करते समय, ऑफिस में जाते समय, ठीक है, 24 घंटे आप अपने साथ में कैरी करेंगे। रात को इवन सोते समय, रात को सोते समय द ओनली पॉइंट जब आप हाथ में पकड़ के रखेंगे, बट यू कैन कीप इट ऑन द बेड, हाथ को, बाकी टाइम कहीं भी सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये करेगा जय, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बिल्कुल लाइफ वैसे चलेगी जैसे आप चाहते हो, गारंटी 101%। जिस दिन बॉटल नीचे रख दी ना, प्रॉब्लम तब से शुरू हो जाएगी, और ज्यादा भी हो सकती है। नाउ थिंक फॉर अ मोमेंट एंड टेल मी कि कितने देर कैरी करना चाहते हो। सर बढ़िया है, पैसे कुछ लग नहीं रहे, एक बॉटल ही तो कैरी करनी है, छोटी सी बॉटल है, पानी जो उसमें है वो आप पी सकते हो, लेकिन एक बार खाली हो गया, पानी दोबारा नहीं भर सकते। बॉटल बंद कर देना, खाली बॉटल कैरी करोगे, वजन भी कम हो जाएगा। बढ़िया है, सोच के बता, लाइफ में कितने साल, पूरी ताउम्र कितना कैरी करना चाहेगा? ये तो मतलब अभी हाथ दर्द करने लग गया है। फिर भी करना चाहेगा शायद। कैरी लाइफ लॉन्ग? लाइफ लॉन्ग तो नहीं, प्रॉब्ली 10 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं। कमाल है, मैं फ्री में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप ये बॉटल पकड़ के रखो, लाइफ सेट चलेगी, तब भी सिर्फ 10 मिनट। क्यों यार, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद में, ना ये बैगेज वैगेज कुछ आएगा दिमाग में। अगर बैगेज नहीं आएगा, एंड इफ दिस इज द ओनली वे, हाथ नहीं लगा रहा है, हाँ, सॉरी, एंड इफ दिस इज द ओनली वे, देन आई नॉट ओनली वे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन आई एम गिविंग यू। ओके, हाँ, देन शायद मैं और लंबी देर कैरी, शायद आधा दिन। आधा दिन? तो आधे दिन के लिए खुश क्यों होना चाहते हो? आधे दिन के लिए खुश होना अच्छी बात है, पूरी लाइफ लॉन्ग? पूरे लाइफ लॉन्ग। सो आधे दिन आप इस पे खुश हो, खुद खुश नहीं रह सकते हैं? बहुत रह सकते- डिपेंडेंट हो? नहीं। ओके, चलो एक और चीज बताता हूँ।
अभी आपने ये रख तो ली अपने पास में, है ना? और आप बोल रहे हो कि आधे घंटे 10 मिनट इतना ही कैरी कर पाऊंगा मैक्सिमम। ओके, जो भी चीज अभी आपके बाल है ना, 2 महीने तक आपने कटवाए नहीं, बड़े हो गए, क्या करोगे? काट देंगे उसको। काट दोगे। वाई? वो बाल क्या है? वेस्ट। लाइबिलिटी है एक बार जब लाइबिलिटी है, वेस्ट है ना आपकी। वेस्ट है। तो जब बाल कट के नीचे गिरेंगे वो कहाँ जाएंगे? कचरे में। डस्टबिन में जाएंगे, है ना? या। ये बॉटल का पानी खत्म हो गया तो इस बॉटल की कितनी वैल्यू है? तो जब पानी के लिए रखा हुआ है अभी तो पीने के लिए, एक टाइम पे बोतल खाली हो जाएगी, तो फिर कितनी वैल्यू है उस बॉटल की? कुछ भी नहीं। जीरो। या। दैट इज ऑल्सो वेस्ट। या। पानी है नहीं, कुछ काम है नहीं, बट हाथ में पकड़ के बैठे हो, है ना? सो दिस इज ऑल्सो वेस्ट। अगर ये प्लास्टिक की बॉटल होती तो थोड़ा टाइम के बाद पकड़ोगे तो आवाज आएगी उसे ना, हाँ। कचड़। वो कान में भी तकलीफ देगी, दिमाग में भी तकलीफ देगी। नेल से बड़े हो जाते हो, क्या करते हो? काट देते हैं। उसकी एफडी क्यों नहीं करा लेते? दैट इज ऑल्सो वेस्ट। वो भी डस्टबिन में जाए। साल में पूरे दिन में आप 24 घंटे खाना खाते हैं, बहुत ऑर्गेनिक खाना खाया, बहुत शुद्ध खाना, बड़ा अच्छा, है ना, डाइट प्लान के हिसाब से एवरीथिंग। खाना किस लिए खाता है आदमी? तंदुरुस्त रहने के लिए। तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए, एनर्जी के लिए। या। और आप इसी भाव से खाते हो। और 24 घंटे बाद बनता क्या है उसका? एक्सक्रीशन यू। एक्सक्रीटा। या एक्सक्रीटा। वो भी वेस्ट ही बनता है। वेस्ट है। चुन चुन के खाते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, बड़े अच्छे से तरीके से, बट उसकी भी काबिलियत देखो, क्या बनता, क्या उसका वेस्ट बनता है। वेस्ट बनता है। और उस वेस्ट का क्या करता है आदमी? रखता है शरीर में नहीं 24 घंटे में, वो भी उससे बीमारी भी हो जाती है अगर शरीर में रख दिया तो। कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो 50 तरह की बीमारी हो सकती है। खुद ताकत के लिए खाते हो, फिट रहने के लिए खाते हो, लेकिन बनता उसका भी एक्सक्रीटा है, और वो भी 24 घंटे में डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल दे दो लाइफ में, बाल का, नाखून का, वेस्ट का, मैंने दे ही दिया। कोई एक चीज जो वेस्ट है और उसको आप संभाल के रखते हो कि इसकी मैं एफडी करा देता हूँ सर, कोई एक एग्जाम्पल, एनीथिंग फ्रॉम योर बॉडी पार्ट से लेकर के लाइफ में कोई भी चीज जो वेस्ट है और आप संभाल के रखते हो, कोई एक एग्जाम्पल दे दो। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, बिकॉज सारी जो वेस्ट चीजें होती है शायद वो तरीके से ऑटोमेटिकली निकल जाती है विदाउट अस इवन रियलाइजिंग, या फिर बिकॉज आपकी मजबूरी, आप रख ही नहीं सकते उसे। रख भी नहीं सकते बिकॉज बाल बड़े रखोगे तो गंदे दिखोगे, नाखून बड़े रखोगे तो अनाइजरी के बीमार हो जाओगे, ठीक है, एक्सक्रीटा पास नहीं करोगे तो भी और भी जान के लाले पड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो चीज आपकी लाइफ में वेस्ट हो गई है, द करेक्ट प्लेस इज बिन। अब उसको जाने दें, प्लीज डिस्पोज इट ऑफ। या। एंड कुदरती तौर पे भगवान ने मेरे को, आपको, तमाम लोगों को इसी तरह डिजाइन किया है कि आपकी और मेरी काबिलियत से बाहर एक बोतल भी कैरी नहीं कर सकते आप, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। एंड आप जो कैरी कर रहे हो उसका वजन आई एम श्योर इस बॉटल से तो ज्यादा ही होगा। बहुत ज्यादा। तो व्हाई यू कैरिंग इट? व्हाई डोंट यू डिस्पोज इट ऑफ? वन। दूसरा, ये तो चलो इट वॉज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कई केसेस में ऐसा होता है, सर उसने मुझे ऐसा बोला था, 4 साल से भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे, उनकी आपस में नहीं बन रही, बच्चा घर छोड़ के निकला हुआ है 3 साल से, पापा ने मुझे एक दिन मारा था, एक दिन मुझे डांटा था, ठीक है, उस चक्कर में घर छोड़ दिया, घर वापस नहीं गया, पेरेंट्स कहीं और ढूंढ रहे हैं, वो दुखी हैं, वो अपनी लाइफ में अलग कहीं गलत कंपनी में निकला हुआ है, जानता हूँ ऐसे केसेस में, ठीक है, कि एक दिन मुझे ऐसा बोला था, एक दिन, ओके यार, एक दिन नाराज हुए तो अगले दिन मना भी सकते हो। एटीएम कार्ड है आपका, है ना, एटीएम कार्ड में पिन कोड डालते हो, हाँ। आप कितने लोगों को देते हो कि ये लो मेरा एटीएम कार्ड ये है और ये इसका पिन है, यूज कर लो? कोई नहीं करेगा ऐसे। कोई नहीं करता, क्यों नहीं करेगा? क्या क्योंकि होगा? हमारी सारी जमा पूंजी जो है वो चोरी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाएगा, आपकी जमा पूंजी चली जाएगी। कितने पैसे होंगे आपके उसमें? कुछ हजार, कुछ लाख, इससे ज्यादा नहीं। इतना सा कार्ड है, उसमें भी आप एटीएम डालते हो, सिक्योर करते हो, टाइम टू टाइम चेंज करते हो, ठीक है, वॉलेट में डालते हो, वॉलेट को भी आदमी पिछवाड़े में घुसा के रखता है कि छुपा के रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा ना। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, जैसे बड़ा बिल गेट है ना लेके घूम रहा है वॉलेट, बट इतना सिक्योर करते हो। एंड आपके इमोशंस, उसकी ज्यादा वेटेज है पैसे की। इमोशंस। पैसे कमा सकता है आदमी, खर्च भी हो जाएंगे और भी आ जाएंगे, बट इमोशन है, किसी का एक बार मन टूट गया, दुखी हो गया, तो उसका इलाज थोड़ा महंगा पड़ता है, नहीं? और उसका एटीएम देखो वो कितना रद्दी है, कितना फद्दू है। कोई भी आदमी आता है, 4 पासवर्ड मारता है, आपको इमोशनली ड्रेन आउट करता है, कह के चलता बनता है, और आदमी फिर कहता है उसने मुझे ऐसा बोला, उस दिन वैसा हुआ था, वो हुआ था। एंड ना सिर्फ वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, बट इन अ लॉट ऑफ केसेस किसी और के कुछ बोलने की वजह से ट्रिगर होके गलत चीजें करते हैं, दूसरों का गलत करते हैं। कमजोर वो है करने वाला, फद्दू है फिर। मैं तो कह रहा हूँ ना, 1 घंटा देता हूँ, आपको भी देता हूँ, आप दे दो दबा के गालियां, कर लो फिजिकल जो मारना है पीटना है, और तू 1 घंटे बाद देख किसी पॉडकास्ट करें तो देखना मेरी परफॉर्मेंस पॉडकास्ट में, ठीक है? रिग्रेट और गिल्ट से मार दूंगा मैं तेरे को। यू कांट डू एनीथिंग टू मी अनटिल अनलेस आई वांट इट टू हैपन। तो आप खुद को मजबूत करो, पकड़नी बॉटल फुल पॉडकास्ट। नहीं सर, मैं परमिशन ले रहा था कि मैं इसको नीचे रख सकता हूँ रख के सर। देख।
अब कैसी फीलिंग आ रही अब हाथ बहुत फ्री लग रहा है. फ्री लग रहा है ना? सो दैट इज द आंसर, एक्सेप्ट इट एंड फ्री, डोंट कैरी एक्स्ट्रा लोड. या तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना लो और आदत डालो कि मेरे को है ना फालतू चीज कैरी करने की आदत है. ठीक है, जो हो गया प्लीज एक्सेप्ट इट, दैट इज द ओनली थिंग. ब्यूटी इसी में है. रियलिटी इज सो वेरी ब्यूटीफुल. पिछले बैच में देयर वाज अ मैन, ध्रुव, सिंगल फादर, लॉस्ट हर वाइफ, यू नो, इन ग्रेट पेन. हम्म. तो उसको था कि है ना, माय वाइफ हैज गॉन, प्रभा हैज गॉन, एंड मेरे को लगता है मुझे भी निकल जाना चाहिए. लॉस्ट इंटरेस्ट इन जॉब, ये वो एवरीथिंग है ना, विच शुड नॉट हैव हैपेंड. ठीक है, हमारी कन्वर्सेशन यही चली थी. मैं उसे ये बताया था, मैं सुन, मैं यू गॉट अ ब्यूटीफुल, है ना, डॉटर, गौरांगी, बहुत छोटी है. पहले एक का काम करना था, अभी दो का काम करना. नाउ यू आर द मॉम एंड यू आर द डैड. रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर वाइफ, है ना, यू नीड टू इन्वेस्ट इनटू दिस चाइल्ड. कर लें, गजब का मजा आएगा. लोग एक ही ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो दो दो ड्यूटी कर दे, है ना. शी विल ऑलवेज से कि माय डैड इज माय मॉम इज माय डैड. वाओ. ठीक है, और वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अभी आज की तारीख में. वाओ सर, ये जो माइंडसेट है कि कम वॉट में आई विल ऑलवेज डू द राइट थिंग, आई विल बी इमोशनली स्टेबल, हाँ. आई विल नॉट डू थिंग्स टू हार्म अदर्स, एंड ये जो आपका एक स्ट्रेंथ है आपके माइंडसेट में, कहीं ना कहीं आई वांट टू रिलेट दिस टू योर सो मेनी इयर्स इन द आर्मी, राइट. एंड आई एम श्योर कि उसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो ट्रेनिंग है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये माइंडसेट डेवलप हुआ. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये पहले भी था, बट इट हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट. सो थोड़ा उस बारे में आई वांट टू टॉक टू यू सर. हाउ वाज योर लाइफ देयर, व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, एंड वैसे तो मुझे लग रहा है आपके लिए कुछ चैलेंज होगा नहीं, लेकिन सर व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड इन टर्म्स ऑफ, प्रॉब्ली कोई ऑपरेशन था जो टफ था, कोई लोग थे जिनसे डील करना बहुत टफ था, प्रॉब्ली सम प्रेशर फ्रॉम आप, बिकॉज हम सुनते रहते हैं कि हमारे बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर होता है. सो वाज दैट अ बिग चैलेंज या फिर कोई ऐसा चैलेंज था? सो मैंने क्या बोला, मेरे को एक ही आदमी है ना दिक्कत दे सकता है. कौन? आप खुद. मैं खुद, कर्नल मेहरबान. ठीक है, मेरे सिवाय तो मेरे को दूसरा कोई आदमी नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे को बोला मैं तुम्हारी रिपोर्ट खराब कर दूंगा. मैं वाओ, आई गॉट 365 days टू प्रूव माई सेल्फ. 365 दिन आपके पास रिपोर्ट लिखने के लिए हैं, तो 365 दिन तो मेरे पास में भी है ना काम करने के लिए. मैं जरा कोशिश करके देखो अपनी तरफ से बेस्ट टू स्पॉइल माई करियर टू माई रिपोर्ट, एंड 365 दिन मैं काम करके देखता हूँ. बट दूसरा आदमी क्या करेगा मुझे मालूम नहीं. इतनी सी जगह होती है अप्रेजल लिखने के लिए, कितना ही नुकसान कर दोगे 32 जगह में. मेरे पास में 365 दिन है. द कैनवस इज टू बिग. मैं इतना काम कर दूंगा कि वो उसमें लिखने में आपको दिक्कत आएगी. यू रिक्वायर एडिशनल पेजेस फॉर दैट. ठीक है, तो 365 दिन में इतना काम कर दिया मैं. सर रिपोर्ट तो एग्जैक्टली आप वो लिखोगे जो मैंने ग्राउंड पे काम किया और जो मैं डिजर्व करता हूँ. कितना ही खराब आदमी हो, जब ग्राउंड पे आप काम मजबूत करते हो ना, तो आपको चाहे शक्ल कोई बिल्कुल पसंद ना करता हो, बट प्रोफेशनली है ना, ही हैज टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि यार बंदे ने काम बहुत करा है. Yeah. ठीक है, तो घबराना क्या है. मेरे को तो सिर्फ एक ही आदमी प्रेशर मेरे को कोई दे, है ना, मैं तभी वो होगा प्रेशर जब मैं एक्सेप्ट करूंगा. व्हाई शुड आई टेक प्रेशर. बोलने वाला तो कुछ भी बोल रहा है. किसी ने कोई काम बताया बट मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है. उसने बोला कि ये काम करना है. मैं क्या बोला वो करना है. मैंने कहा सर ऐसा है, मंत्री जी हैं, आप बोल रहे हो यहाँ जाना वहाँ जाना, उनकी वाइफ के यहाँ जाना. मैं फौज में मैं सर ठोका ठाकी के लिए आया था. काम है, हथियार है मेरे पास में, ऑपरेशन इलाके में, वो बता दो. एंड देन फील गुड. Yeah. या तो आप दूसरे को खुश कर लो और यू टेक प्राइड इन योरसेल्फ Yeah. कि काम गलत था भैया, मैंने मना कर दिया ठोक बजा के. मजबूत सिपाही हूँ, आपका दम होना चाहिए. दूसरा मेरे को प्रेशर देगा, क्यों देगा प्रेशर, मैं लूंगा नहीं ना. पॉलिटिकल आदमी क्यों प्रेशर देगा, और दे रहा है तो ले कौन रहा है उससे प्रेशर. मेरे पास फौज में भैया कमांडर तय करा हुआ है कि भाई मेरे ऊपर कमांडर है. मेरे को कुछ चाहिए फौज में, हुक्म कौन देगा, कमांडर देगा. ठीक है, कोई नेता नहीं बताएगा उन्हें क्या काम करना है. कमांडर बैठा है, उसके ऊपर एक और कमांडर है, उनके ऊपर एक और कमांडर है. देयर इज ए हायरार्की, है ना, एंड पीपल नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन. Yeah. तो इतने बुरे दिन अभी आए नहीं कि ना कोई बताएगा. डिस्कशन होते हैं, ठीक है, फोरम होते हैं जहाँ पॉलिटिशियन भी आता है. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया और हो गया. पूछते हैं कि फौजी आदमी से हायरार्की में कि हम ये प्रपोजल है, इसमें आप क्या कहते हैं. तो बताएगा जनरल साहब कि भाई ये इसके फायदे हैं, ये नुकसान है, हम लोगों ने इसके बारे में कॉन्फ्रेंस करी है, हमारा ये फाइनल टेक है कि ये चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और ये रूल निकलना चाहिए बिकॉज उसमें ये फायदे हैं, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज उसमें नुकसान है.
हाँ, सीनियर कमजोर है तो गलत चीज को भी यस कर देगा, या और अगर मजबूत है तो भैया गलत चीज को तो गलत ही बताएगा। तो ऐसा नहीं है किसी ने प्रेशर दे दिया और हमने ले लिया, ऐसे क्यों होगा? सर मानिक शाह, वन लाइव एग्जाम्पल, यू नो, नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्या बोला उन्होंने कि सैम आई वांट, है ना, बांग्लादेश। तो उन्होंने क्या बोला था, मिसेस प्राइम मिनिस्टर यू वांट वॉर? बोले नो। बोला अगर आपको हारना है, ठीक है, तो आप अभी जाएंगे एड, यू गो एड, ठीक है, बिकॉज हमारी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, एमिनेशन इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, लोगों के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ड्रेस नहीं है, सो टाइम लगेगा। अगर जंग हारनी है तो अभी जंग में कूदेंगे, अदरवाइज माई आंसर इज नो। अभी मानसून है, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी, इतनी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुई कि वहां पे पहुंच जाए, तो मानसून का सीजन चल रहा है एंड माई आंसर इज नो। बट यस, आपको अगर लड़ाई चाहिए तो वो फौजी हिसाब किताब से होगी, प्लान हम बनाएंगे, यू वेट फॉर द राइट टाइम एंड आई टेल यू, एंड 11 दिन है, ऑन 10.5 day आई विल डिलीवर यू न्यू बांग्लादेश। वाओ, चीफ, है ना, दैट टाइम, यू नो, फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह, या सर ने प्राइम मिनिस्टर को बोला था गलत टाइम पे अभी नहीं होना चाहिए, कारण बताया, बात समझ में भी आई, उन्होंने बोला बात ठीक कर रहे हैं, और जब उन्होंने बोला कि भाई मौका दे दो 11 दिन में, देखो व्हाट ए ब्लडी क्रिएटिविटी। अभी एक पीछे से ना एक कॉर्पोरेट इवेंट था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि ना कैन यू टच अपॉन क्योस होता है, एंड क्योस में फिर क्रिएटिविटी पे थोड़ा ध्यान देना होता है। मैं खड़े खड़े देता हूँ एग्जाम्पल, हेलो व्हाट, मैं 1971 वॉर, भाई लड़ाई से ज्यादा क्या ही होगा, एक डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुई कॉर्पोरेट में, यू कॉल इट क्योस। मैं कह रहा हूँ इंटायर कंट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ पूरा सिविल महकमा भी, सारे पूरी कंट्री इफेक्टेड है ना, फुल फ्लेज्ड वॉर ब्रोकन बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, इससे ज्यादा क्योस तो नहीं होगा ना कॉर्पोरेट में। या सिस्टम डाउन हो गया, प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है ना, डेडलाइन नहीं हो रही, टारगेट रेवेन्यू नहीं, दोनों की कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकती, मतलब इतने वाइल्डली डिफरेंट सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी कोई कंपनी होगी और एक पूरी कंट्री की लड़ाई हो रही है ना, सिविल और फौज दोनों इफेक्टेड है, इससे ज्यादा क्योस तो नहीं हो सकता। नहीं, एंड जनता कॉर्पोरेट में उसमें क्रिएट नहीं दिखा पा रही क्रिएटिविटी। लुक एट द क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है, 11 दिन की लड़ाई के अंदर एक देश के दो टुकड़े करके एक नई कंट्री हमने पैदा कर दी। व्हाट ए बड़ी क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, वाओ, हैट्स ऑफ टू देम। या ये होना चाहिए लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कि अब मौका तो दो काम करने का, क्रिएटिविटी तो टूट टूट भरी है आर्म फोर्सेस में, आर्मी ने अपना काम करा, एयरफोर्स ने अपना, नेवी ने इतना, वहां लड़ाई चलती रही एंड वी वर बिजी क्रिएटिंग कंटेंट, एंड कंटेंट टू द एक्सटेंट एंड क्रिएटिविटी कंट्री के दो टुकड़े करके दो देश बना दिए। इससे बढ़िया और एग्जांपल है क्रिएटिविटी का दो, नहीं है ना? एब्सोल्युटली, तो कंप्लेन किस चीज की? या लाइफ में वही होगा आपके साथ में जो आप चाहते हो, आप जो देखना चाहते हो आपको वही दिखेगा, है ना। उस समय देखा सर मानिक शाह ने कि भाई मेरे को ये अलग देश दिखाई देता है, वही मिला। जो सुनना चाहते हो वही सुनेगा, है ना। वो सुनना चाहते थे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, वही हुआ। सो यार, इट इज नॉट अबाउट यू नो दीज थिंग्स। सो कमिंग बैक टू टू मोर क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी, वन इज कि माइंडसेट कहाँ से आया, और फौज की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है ना, या और दूसरा बिगेस्ट चैलेंज। यस सर, बिगेस्ट चैलेंज। यार माइंडसेट जो है ना, पहला जो भी चीज होती है, मैं बच्चों को बताता हूँ कि आज की तारीख में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो हैं, दे आर गुड ओनली टू इश्यू डिग्रीज ओनली। सीखता है वहाँ पे घंटा कोई कुछ नहीं है, यू नो। इट इज ओनली यू कंप्लीट 2 years 3 years एंड आपके पास एक डिग्री होती है। एक्चुअल में लाइफ में इंसान वो सीखता है द लाइफ यू लिव, वेदर इट इज एट योर होम और आउटसाइड 4 walls। जो जिंदगी आप जीते हो ना, आप सीखते तो वहीं से हो। टेक्स्ट बुक में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होता है, बाकी अदरवाइज यू लर्न एवरी डे द लाइफ यू लिव। घर में अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं, बदतमीजी से आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे का नेचर वैसे ही होगा। फॉल लैंग्वेज यूज हो रही है, वो भी वैसे ही करेगा। फादर ड्रिंक लेके आ रहा है, मारपिटाई कर रहा है, वो उसका एडवांस वर्जन तैयार होगा घर पे, ठीक है। मैंने माइंड से जो मेरा था वो मैंने यार अपने घर से देखा। आई हैव सीन माई, है ना, ग्रैंडफादर, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे वर्ल्ड वॉर वाली जनरी थी, 6 feet plus, 6'3", बट टॉल, हमेशा बिल्कुल मूछें ऐसी, साफा पगड़ी ऐसे, और बिल्कुल ऐसे देखा उन्हें, इंस्पाइट, है ना, फ्यू बुलेट इंजरीज, बट बिल्कुल ऐसे कड़क। बैठते भी थे हमेशा ऐसे, बात भी करते थे ऐसे, चलते सीधे तब भी ऐसे। तो आई हैव सीन इट फ्रॉम हियर। मैंने तो कभी नहीं देखा उनको कोई कंप्लेन करते हुए कुछ भी एंड ऑल दैट, ठीक है। और जो उनके बड़े ब्रदर थे, मेरे दादाजी के बड़े भाई, ठीक है, बड़े दादाजी, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इन फौज, बट देन ही केम आउट, ही हैड प्रॉब्लम, ही हैड ओनली 1 leg। बट अभी भी लोग घर पे बताते हैं ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इन फैमिली। मेरी अपनी मदर, देयर वाज अ स्टेज जहाँ पे मेरे फादर जांडके में पोस्टेड थे, और मेरी मम्मी है वो 1 साल के लिए, मतलब शी वाज टोटली कंप्लीटली बेड रिडन। 1 साल तक मतलब ऐसे थी बेड उनकी, सर नीचे और टांगे ऊपर की तरफ,
और उस समय ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, एक बेल्ट बांध के दोनों साइड से, है ना, 7-8 ईंट इधर, 4-5 ईंट इधर, 4-5 ईंट इधर, ऐसे ईंटें दोनों साइड से कमर से बांध के रखी होती थी टू पुट हर स्पाइन इन स्ट्रेट। 1 साल तक ऐसी पोजीशन में रही है मेरी मदर, है ना, इतनी दिक्कत थी उनको। बट मुझे अभी भी सोचकर कि कब मेरी मदर मतलब कंप्लेन कर रही थी, तब भी उनको ये चिंता रहती थी, बेटा आपका खाने का हो गया, उसका थोड़ा देख लेना छोटे का। मैंने कभी मेरी मदर को कंप्लेन करते हुए नहीं देखा, याद ही नहीं आ रहा। फादर फौजी थे, आज इधर पोस्टिंग, आज उधर पोस्टिंग, कभी हमारे को लेकर के एक जगह रह रहे हैं, कभी कहीं पे रह रहे हैं। आई नेवर सीन। वन ऑफ द मोस्ट फॉन्ड मेमोरीज ना, उस समय जब आते थे फौजी आदमी के पास एक अपना पिट्ठू होता था, एक बेडिंग होती थी, मॉस्किटो नेट होता था। तो कई बार है जब छुट्टी आते थे या जाते थे तो रेलवे स्टेशन पे बिछाते थे मेरे फादर, बड़ी नाइसली, है ना, यूज टू पुट बेडिंग लगा दी, मॉस्किटो नेट लगा दी, और फौजी ज़्यादातर ऐसे ही रहते थे, और रेलवे स्टेशन पे हम सो जाते थे वहाँ पे। बट ये लगता था कि उस सिचुएशन में जहाँ रिसोर्सेज कम है, बट एज ए फौजी, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, माई फादर वॉज सो ओपन अबाउट कि बिल्कुल तरीके से साफ जगह करके और अच्छे से लगाते थे कि माई वाइफ एंड चिल्ड्रन शुड बी कंफर्टेबल। दैट वॉज ग्रेट एग्जाम्पल यार, मैंने तो कोई नहीं देखा। अभी क्या बैटरी फोन थोड़ी सी ड्रेनर उठ जाए आदमी इरिटेट हो जाता है, पेरेंट्स एक चीज के लिए मना करते हैं, बच्चे यूं नाराज हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है, आज की तारीख में जो स्ट्रगल बता रहे, मैं कल भी बता रहा था जनरेशन, है ना, कि मैं तुम लोग आज की तारीख में जिस चीज को स्ट्रगल बताते हैं ना, दैट इज एक्चुअली प्रिविलेज फॉर यू। 3 साल से 5 साल से क्या करो, यूपीएससी की तैयारी। ओके, मैं हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सर, आई सेड, आई आस्क्ड यू हु इज द चेयरमैन यूपीएससी सर, आई डोंट नो। वाह, 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता यूपीएससी चेयरमैन कौन है। मैं दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट यू यार, गजब तैयारी कर रहे हो, यू नो। हमारे टाइम पे ये होता था, कॉलेज खत्म हो गया, बेटा नौकरी कर लो, बेटा 2 पैसे कमा लो, सब बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ कर लो, फौज में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जैसी काबिलियत है, जितना आता है, बट कुछ ना कुछ कर लो। किसी पेरेंट के पास में लग्जरी नहीं थी, जब गांव से आता हो कहीं पे भी, कि बेटा कुछ काम करो। आज की तारीख में आप 3-3 साल, 5-5 साल, है ना, गैप ईयर लेते हो, ड्रॉप लेते हो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस लेते हो, पेरेंट्स लाखों रुपए लगाते हैं, रिजल्ट क्या है, सब तैयारी कर रहे हैं। इस बार ना कट ऑफ ज़्यादा चला गया, मेहनत क्यों नहीं करी सर, इस बार ऐसा हो गया, इस बार पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया। बट 3 से 5 साल आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, ट्यूशन, कोचिंग, एंड आप बोल रहे हो स्ट्रगल है, कॉम्पिटिशन है। भाई साहब, लग्जरी है, प्योर लग्जरी। मेरे पास तो नहीं थी ये लग्जरी। मेरे को लग रहा था पापा की थोड़ी लोन है वो क्लियर कर देंगे, पापा की थोड़ी हेल्प करेंगे, पापा रिटायरमेंट आ जाएंगे, अभी क्या करना है। अब कौन बच्चा सोच रहा है, सब हवा में है ज़्यादातर। रील देख के हर एक को लग रहा है रातों रात पैसा कमाना है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भाई मैं, है ना, अपना ये करूंगा, हर आदमी इंटरप्रेनर बन रहा है। ठीक है, क्लैरिटी इतनी कमजोर है, पहले एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद में कुछ और कर रहा है, बाद में सर मेरा अपना स्टार्टअप है, वेरी नाइस यार। आईआईटी कर रहा है, सर मैं अभी बुक लिखूंगा, मैं ऑथर बन गया हूँ, करो, करना चाहिए, बट क्लैरिटी बहुत कमजोर है ना। तो मैं स्ट्रगल्स देखे अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने फादर को कभी भी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। अपने फादर को ग्रेनेड, है ना, इंजरी होते हुए देखा है, पूरा चेहरा बिगड़ते हुए देखा, बट आई नेवर सीन माई फादर क्राइंग। सो दिस माइंडसेट कम्स फ्रॉम देयर। वाओ, घर की जिम्मेदारियां लेना, है ना, पूरे अपने परिवार को हैंडल करना, माइंडसेट यार वहां पे डेवलप होता है, घर के ऊपर। फौज में तो बाद में आया ना, पहले तो लाइफ घर पे ही देखी जितनी देखी है। मकान बन रहा है तो मकान पे जो फादर से सीखा, तो यही करता था। फादर कहीं बाहर थे एंड मैं, मेरा भाई घर पे थे, एंड मम्मी को हमने बोला ब्रेक हो जाएगा, आप बड़े टाइम बाद ठीक हो, पापा के पास जाओ, है ना। ही वॉज पोस्टेड इन दैट टाइम क्वाजीगोंड, जवाहर टनल के आगे एक जगह आती, फर्स्ट प्लेस। तो वहाँ पे उनको भेजा, फादर ने 5,000 रुपीज़ दिए थे हमारे को। आई वाज इन कॉलेज एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन कॉलेज। तो वी डिसाइडेड मैं काम करते हैं, पीछे का हिस्सा ना खाली है, तो इसमें मिट्टी वगैरह डलवा देते हैं, है ना, इस पैसे से हो जाएगा। हमें तो कुछ ज़रूरत है नहीं, खाना पीना तो घर पे रखा है, तो हमने ट्रैक्टर ट्रक मंगा के उसमें बहुत सारी मिट्टी डलवाई। कॉलेज जाता था फटाफट, कॉलेज में अटेंडेंस लगाई, एनसीसी का था, जाके कंडक्ट वॉज गुड। मैंने कहा मैम घर पे थोड़ा काम है, मैं जाना चाहता हूँ, कैन आई गो? बोले ठीक है बेटा जाओ। तो एक क्लास अटेंड करता था, बाकी की 4 क्लासेस में आकर के ईंटें उठा के 10-10, 15-15 ईंटें उठा के पहले ऊपर रखता जहाँ पे काम चल रहा है, दीवार गीली करनी, तराई करनी, वो करता था। बब्बी है मेरा भाई, छोटा फ्रेंड संजीव, उसके दोस्त भी आ जाते थे। ठीक है, और तसले तसले पूरा उठा के, पूरे ट्रक के ट्रक हम लोग मिट्टी अंदर ला के कूट काट के फिट कर दिया। मैं गुड यार, नाउ इट लुक्स गुड, 5,000 रुपये में पापा खुश हो जाएंगे, हमने कुछ काम किया है। दिस माइंडसेट केम फ्रॉम देयर। साइकिल थी लेकिन प्राइड लेता था, एक दिन में 40 किलोमीटर ना, एनसीसी हेडक्वार्टर तक जाना आना, सुबह जाना है शाम को आना है, जाना है, वन वे 10 किलोमीटर पड़ता था, तो 40 किलोमीटर है। आई नेवर कंप्लेन, दिस माइंडसेट कम फ्रॉम देयर, यू नो। वाओ, वाओ। एंड फौज में आने के बाद में फिर, है ना, द ट्रेनिंग स्टार्ट्स, एंड ऑब्वियसली अब जितना ट्रेनिंग मिलती है, जितने सख्त एक्सपोजर मिलते हैं, वेदर इन ऑपरेशन, कोई आदमी मर रहा है,
आप किसी और के सामने देख रहे हो, किसी के घर से कोई बंदा चला गया, कोई आपके साथ था, कल तक है ना जैन साहब कर रहा था, टुडे है ना इज नो मोर देयर टू टेल यू जैन साहब, पानी ले आऊँ, चाय ला के दूँ साहब. सो सख्त तो होता है आदमी. तो दैट वाज अ कैटलिस्ट विच वाज अ कंपाउंडिंग फैक्टर. तो इनिशियल बिडिंग इन वाज थ्रू माय पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी मेरा भाई, और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वहां से आया. एंड इस माइंडसेट को फिर फौज ने पॉलिश करा ऑब्वियसली. सर आई कैन थिंक ऑफ अ लाइन जो भी आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, दैट प्रिविलेज इज इनविजिबल टू दोज हु हैव इट. उनको दिखाई नहीं देता. मैं बता रहा हूँ ना, तो देख ले एक एग्जांपल. इतनी प्रॉब्लम तो आपने सुनी यहाँ पे, है ना. हाँ, मैं सर रो रहे हैं लोग. यस, मैं उस मेरे पास वो भी प्रिविलेज नहीं है. आई कांट इवन क्राई. मैं रोऊंगा देन दे आर काउंटिंग ऑन यू सर. दैट्स व्हाई. दे आर काउंटिंग तो ऑन. पूछता सर आप रोते हो? मैं रोता हूँ, बारिश होती तब जाके खड़ा होता हूँ बीच में, है ना. बट आई डोंट हैव दैट. आई एम सो अंडर प्रिविलेज्ड, यू नो. रोना भी लागू नहीं है. गुड. देन व्हाट्स व्हाई प्रॉब्लम के कुछ नहीं सुनता. अभी आपके सामने कॉल आया था 43 ईयर ओल्ड लेडी, आई वाज अबाउट टू आस्क अबाउट दैट सर. दैट चीख चीख के रो रही थी ना. या क्या कहती थी, 4 दिन के लिए आई थी, बट आई वाज द हैप्पीएस्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दवाई नहीं ली. अब घर पहुंची हूँ, प्रॉब्लम की सिवाय कुछ नहीं है. डॉक्टर कह रहा है एडमिट हो जाओ, बचोगे नहीं. इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू. या एंड मैंने क्या बोला, मैं 8 बजे कॉल करना, तसल्ली से बात सुनूंगा, सॉल्यूशन पक्का दूंगा. आई डोंट हैव प्रिविलेज. ऐसा भी बंदा है जो सामने आके खड़ा होता है, कहते सर आई हैव लेस टाइम, आई एम गोइंग अ कपल ऑफ आवर्स, आई एम गोइंग टू डाई. मैं उसको बैठ के सुनता हूँ. ओके बैठ, बता सकता हूँ, जाते समय मिल लेना रास्ते में. जो आज के एक्सपीरियंस वो बताएगा. you have to be the rock for them. And just to give some context to everyone who's watching, नायक ने नाम दिया कल माउंटेन, बट कितना एब्जॉर्ब करेगा माउंटेन को. just to give context to everyone who's watching, right before we started shooting, एक कॉल आया था सर को जिसमें there was this lady जिसकी सर बात कर रहे थे, जो फूट फूट के रो रही थी, and she was trying to share her problems, and sir had to somehow deal with her also. Sir has of course met her before. वो यहाँ पे आई थी, रही थी बहुत टाइम के लिए, and that is एक दिन के लिए मैं जाएगी मेरी मर्जी से. जाएगी आपकी मर्जी से. So that and मैं सुबह से जब से यहाँ पे हूँ सर, मैं I've heard many such stories from so many students of yours. इसमें सर मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस लगे जो बहुत ही एक्सट्रीम थे. Someone was suffering from drug abuse, someone was a violent person themselves, behaving badly with their sister and all. आपके हिसाब से सर what is like an extreme situation that you saw or you heard, and how did you help that individual with that? यार इतना सोचता तो मैं नहीं हूँ. आई जस्ट है ना बिहेव और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन ए मैनर जो उसमें यहाँ से आवाज आती है, यू नो. जैसे एक बार एक कॉल आया था, सम गर्ल, एंड फोन उसने बोला हेलो मम्मा सर. आई सेड मैं, कौन बोल रहा है? गेस क्या हो सकता है? अभी अगर मैं किसी पूछूं कौन बोल रहा है तो क्या आना चाहिए जवाब? उसका नाम आना चाहिए. नाम आना चाहिए. वहां से जवाब आया सर मैं प्रोस्टिट्यूट बोल रही हूँ. ये वन ऑफ दोस केसेस था जहां पे मेरे को 2 सेकंड लगे, है ना. मैं प्रोस्टिट्यूट. ऐसे मैं बेटा मैंने आपका नाम पूछा है, आपका नाम क्या है? तो फिर वो चुप थी थोड़ी देर के लिए. देन आई आस्क्ड, मैं बेटा तू रो रही है? कहते नहीं सर, बट मन कर रहा है बहुत जोर से रोने का. मैं क्यों? कहते सर एक तो बेटा किसी ने बोला नहीं कभी, और मेरे को प्रोस्टिट्यूट एंड इसी तरह के नामों से बोलते हैं लोग. दे कॉल मी नेम्स, और किसी ने पूछा ही नहीं मेरा नाम एक्चुअली. अभी अचानक से आपने पूछ लिया तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में. मैं अपना नाम भी भूल गई सर. सो दैट वाज वेरी पेनफुल. फिर मैंने उससे दूसरी चीज जो मैं कॉमनली पूछता हूँ, मैं कॉल क्यों किया मुझे? मैं वो डिड नो अबाउट मी, व्हाई डिसाइडेड टू गिव मी कॉल? तो शी सेड कि मैंने आपको देखा, आपको सुना, आई फील कनेक्टेड विद यू. ओके, नॉर्मली पीपल टेल मी. शी सेड कि आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी. मुझे ऐसा लगता है, मैं ये भी मुझे बताते हैं लोग, है ना, हक जताना आना चाहिए कि यू बिलोंग टू मी. मैं कॉल क्यों किया तू ये बता मुझे अभी. शी सेड कि मैं पता ही नहीं मुझे यहाँ पे कैसे पहुंची, है ना. समबडी केम हियर, मुझे बेच के चले गए, और फिर यहाँ पे ऐसे ही माहौल, मुझे लगा कि दिस इज माई लाइफ. बट व्हेन आई हर्ड यू, मुझे लगा कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, कि जो आदमी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता ना, वो लाइफ में किसी के लिए और कुछ नहीं कर सकता. तो जो वो छोड़ के चले गए तो वो तो बियॉन्ड मी था. बट अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं इतने साल की हो गई हूँ, मुझे लगता है अब मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए. देन चीज कि आप, मैंने देखा आप कुछ पढ़ाते हो ना और ट्रेनिंग देते हो. मैंने कहा हाँ, करता हूँ कोशिश. चीज कि मैंने कुछ बुक्स भी खरीद ली हैं और अब मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है. बट आपसे पूछना था सर, मैं क्या? कहते मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ ना. मैं नहीं, नाम. कहते नहीं, वैसे मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ. अगर मैं अपना एग्जाम क्लियर कर दूंगा, आप बोलते हो नथिंग इज फॉर फ्री, तो मैंने अगर एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? दिस वाज द क्वेश्चन. दैट वाज वेरी हार्ट रेंचिंग एंड हार्ट मेल्टिंग. Wow.
मैंने कहा चल एक भाव है, एक बच्ची में पैदा हुआ, उसे इसके आई एम प्रोस्टिट्यूट, बट मैंने किताब मंगाई है, मैंने पढ़ाई शुरू करी, मैं आऊँगी तब मुझे पढ़ा दोगे, आपको उसमें बेइज्जती तो नहीं लगेगी? मैं छाती ठोक करके बोलूंगा लाल किले पे खड़े होके कि दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू मी। तूने बोला ना यू बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू यू। मैं तो एग्जाम क्लियर करके दिखा, फीस ₹1 है ना, there's ₹1 रिपल इफेक्ट है ना, यू कांट इमेजिन हाउ फार इट गोज। मैं छाती ठोक करके बताऊंगा, और बताना किसी को कि मैं ये करती थी, एंड जिस चीज में आज तू दिक्कत महसूस कर रही है ना, इट विल बिकम ए स्टोरी है ना फॉर मेनी पीपल, इट इज गोइंग टू इंस्पायर पीपल। तो एग्जाम क्लियर करके दिखा, ठीक है, ऑन इट, एंड फिर तू देख मैं ट्रेनिंग कैसे कराता हूँ। ऐसी ट्रेनिंग करा के दूंगा लाइफ में किसी ने नहीं कराई। आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ यू, है ना, एंड आई विल टेल कि शी बिलोंग्स टू मी एंड शी इज माई ब्राइड। कहते सर अब तंग नहीं करूंगी आपको, बस यही पूछना था। अब आप देखो मैं तैयारी करती हूँ एंड आई एम वेटिंग, कौन सा एग्जाम देती है, कब एग्जाम क्लियर करती है, एंड शी शुड कम हियर। सबसे आगे वाली रो में बिठाऊंगा, ठीक है, और मैं कोई पूछे बता देना कि मेरा डैड इज कर्नल बैरवान, लेट मी सी हु रेजेस क्वेश्चन, तो करके दिखा मुझे। सो दिस इज वन ऑफ दोस, है ना, Extreme cases that जहाँ पे मतलब है ना, मैं 2 सेकंड मुझे लगे, नहीं तो मैं लगाता नहीं 2 सेकंड जनरली, बोलने में, ठोकने में, बताने में, जवाब देने में, बट इसमें लगे मुझे 2 सेकंड, है ना। wow. और एक और आया था जिसने बोला कि सर घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम है ना, 50 साल का आदमी है, थायराइड भी है, गंजा भी है, ये भी है, कह रहे हैं कि हमारी लड़की ले जाओ और इसको दे दो। सर मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है, छुप छुप के मार खा खा के सर मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, बट कल बोल रहे हैं लड़का देखने आ रहे हैं, कल शादी करेंगे तुम्हारी, सर प्लीज। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ मैं इतनी दूर से बैठ कर गए। कहते कुछ तो रास्ता होगा, आपका नाम कल मैजिक है, आपका नाम कल सॉल्यूशन है, एक किसी ने बोला आप डोरेमोन हो, आपके सारे गैजेट हैं। उसने मुझे इतनी सारी चीजें गिना दी मुझे। The faith that हाँ, she had. अभी इमेजिन तू बता क्या सॉल्यूशन देगा। कह रहे घर वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, आपके पास आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकती, आपने बोला था 18 साल से ऊपर हो तो मैं करूंगा कुछ, बट मेरे को वो भी जाने नहीं देंगे घर से बाहर, फोन बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, कुछ तो बता दो, कल सुबह लड़के लोग आ जाएंगे, क्या सोल्यूशन है बता। मतलब मुझे अगर ऐसे कोई मुझे कॉल करेगा तो पहले तो मैं बहुत डर जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज सोल्यूशन मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ. कोशिश करके देख। If she is in a situation or in a house where she has to go through a lot of abuse, emotional abuse, mental abuse, physical abuse, God forbid, my first thing to her would be probably try and call the closest person to you. कोई क्लोज नहीं है, Try and call the cops. Probably they can help. और और घर वाले हैं उनमें से ही कॉप में, कहते कोशिश करके देख ले, पुलिस भी तेरे कोई काम नहीं आएगी। घर का ही बंदा बैठा पुलिस का, कहते करके देख, मैं देखता हूँ तेरी कौन हेल्प करता है, तो एनजीओ में फोन करके देख, मैं देखता हूँ तेरी कौन हेल्प करता है, तो पॉलिटिशियन को फोन करके देख, मैं देखता हूँ तेरी कौन हेल्प करता है। मैंने कहा इस सिचुएशन के अंदर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इज YOU, यू ओनली कैन हेल्प योरसेल्फ। wow. कैसे सर हाउ, मैं इतना बताता हूँ, छोटा सा एक्शन करके देख ले, अगर तेरे से होता हो तो। मैं कर लेगी, मैं सॉल्यूशन में दे दूंगा, सजेस्ट दे सकता हूँ, बट अगर कर सकती है तो बताना हाथों हाथ ओनली। मैं तूने भरोसे में किया ना, भरोसे में मैं एक चीज बताता हूँ, तो कोशिश करके देख ले अगर तुझसे होता हो तो। कहते सर कर दूंगा, बता दो, ऐसे मैं ओके कर ले, उसने कर दिया, ठीक है, क्या किया होगा सोच। वही मैं पूछ रहा था, सोल्यूशन क्या था इस चीज का? आई सेड मैं शेव ऑफ योर हेड, आई वांट टू सी, है ना, हु इज दिस मर्द आदमी हु वांट टू गेट मैरिड टू, है ना, गर्ल हु इज बॉल्ड। मैं उसका असली मर्द निकल के आएगा बाहर। उसने पहले बाल काटे, टेढ़े पेढ़े शेव करा, उसने पूरे बाल उड़ा दी, गंजी हो गई वो। पहले तो घर वाले पैनिक में थे कि ये क्या दिखाएंगे कल, है ना, कि ये इनकी शादी। वो कहता भैया मैं बेइज्जती नहीं करा सकता, इस तरह बाल नहीं है इसके, क्या इलाज है। कहते सर कर दिया मैं, तो मैं कर ले भाई, तो मैं भी पढ़ाई भी ध्यान दे, आराम से बाल आ जाएंगे अपने आप। रणनीति बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे दी ओनली सॉल्यूशन तो है हर प्रॉब्लम का, मैं तो हमेशा कहता हूँ हर चीज का ना एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज YOU। तो दुनिया की मेरे को 1000 प्रॉब्लम बता, मैं यहाँ पे, और मैं तेरे को 1000 का सॉल्यूशन ही बताऊंगा, YOU। सॉल्यूशन तो आएगा निकल के, बट सॉल्यूशन तो आप ही निकालोगे। आई कैन ओनली सजेस्ट यू, गाइड यू, बट सामने वाला ऐसा माहौल बना रहा है बिल्कुल, तो वो छोड़ा ही नहीं तरीका आपने। मैं देखना चाहता हूँ ना कितने लोग हैं, मर्द तभी तक मर्द है, जैसी बाल गड़े कि आ जाओ भैया, कि बोला यार ये क्या है, ये तो 20-30 के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, मैं नहीं दिख रहा ना। आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा जो देखना चाहते हो। असली बंदा होता ना तो कहता बालों की कोई परवाह नहीं है, लड़की अच्छी है, मैं करूंगा शादी, तो कर लेता। स्टिल आई वुड हैव बीन हैप्पी कि मैं गुड, तेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का तो आया है, 50 साल का है लेकिन बढ़िया बंदा है, बंदा ही नहीं है वो, है ना। एब्सोल्युटली तो है। सर। इससे पहले हम यहाँ पे आए, इससे पहले
हम लोग वहां पे थे एंड एक आपने क्वेश्चन रह गया तेरा, सॉरी है ना, हाँ, इंटरप्टिंग यू। तूने पूछा सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ में क्या है? हाँ, यस यस, सो आई सबसे आस्क दैट। बड़ा कभी बाद में पूछ लेना बीच में, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज है टुडेज जनरेशन, बिगेस्ट चैलेंज आई एम हैंडलिंग, यू नो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज है दे बिकम सॉफ्ट। यार। दिस जस्ट वन स्मॉल पार्ट है ना। सबसे बड़ा है स्ट्रेस। किस चीज का हमको खुद को नहीं पता, बट बहुत है। पेरेंट्स भी स्ट्रेस है उनके लिए, पढ़ाई भी स्ट्रेस है, करियर भी स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी स्ट्रेस है, ठीक है, सोशल स्टेटस है वो भी स्ट्रेस है, फोन की वैरायटी दूसरों से छोटी हो वो भी स्ट्रेस है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो चीज मिला है शुक्रगुजार किसी चीज के लिए नहीं, बट शिकायत हर एक चीज से है। बिगेस्ट चैलेंज। और दूसरा है फोन। आई एम येट टू सी, बड़ी है ना, इट इज नथिंग लेस देन है ना मोबाइल टेररिज्म टुडे। या सो ब्लडी गूफ्ड अप, या कुछ नहीं पता। कितने लोगों ने बोला कि सर मैं फोन यूज नहीं किया उन्होंने 18 स्पेसिफिकली घंटे यूज करते थे। हाँ उन्होंने कैसा स्पेसिफिक पड़ा रहता है, कहाँ पे यूज ही नहीं करते हम। सर पेरेंट्स से बात करने के लिए यूज करते हैं, और मैं कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, कर लो यूज। और ना कोई ऐसा मतलब खतरनाक शेड्यूल है कि टाइम नहीं है, खुद से नहीं करते, टाइम खुद से नहीं करते, खुद से नहीं। जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती, बट जो आदमी रियलाइजेशन से करता ना वो काम करती है। कितना चलोगे किक स्टार्ट में, ऑटो स्टार्ट में चलो ना, मजा तो उसी में है। Sir, I was talking to someone who deals with mental health issues, and that person told me, I asked him the same question, कि डिप्रेशन एंजाइटी, आजकल 14 साल की लड़की है, बच्ची आके बोल रही है कि डिप्रेस्ड हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो एक योर नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो एक टाइम पे नॉर्मल घर की चीजें करने से या नॉर्मल अपनी जिंदगी जीने से योर माइंड वाज नॉर्मल। नाउ दैट लेवल हैज, यू गेट सो मच किक ऑफ डोपामीन कि रील देख ली, मजा आ गया, ये कर लिया, वो कर लिया, कि व्हेन यू आर इन योर नॉर्मल लाइफ। मेरे से ले लो, छाती के अंदर यू विल गेट मोर डोपामिन रिलीज्ड। मेरा खा के देखो छाती में एक बार मुक्का, अरे यहाँ वॉलंटियर है, मजाक नहीं कर रहा सर, फोन पे यहाँ पे आगे सिर्फ मुक्का मार दो, मैं सर मैं मर जाऊंगा। आई विल डाई। माने कहते हैं डोपामिन रिलीज, मैं डोपामिन नहीं, तू ही रिलीज हो जाएगा ना, तो मत फोर्स कर मारने के लिए। कॉमन रिक्वेस्ट है दीजिए, सर मारो सर, एक छाते मुक्का मारो, डांट दो। ये रिक्वेस्ट करते हैं सर। कल भी कहता पब्लिक फोरम में, सर एक बार डांट खानी है बस। बेटा क्यों खानी है डांट, आप लोग अच्छे हो यार, डांट अच्छा तो काम मैं करो। खा के जिंदा रहूंगा सर, बट मुक्का मर जाऊंगा सर। एंड ऑन दैट नोट सर, अभी जैसे मैं अभी कह रहा था कि पीछे आपने मुझसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाई, मैं एक एक्सरसाइज नहीं कर पाया उसमें से, जो भी आपने कराई उसमें से एक मैं कहना चाहूंगा स्पेसिफिकली कि इट्स वेरी सिंपल। सर ने एक AK-47, that was an AK-47, right? एक AK-47 ऐसे ली, and he kept it very straight. His hand was completely like straight, 90 degrees. From the barrel, From the barrel, he held it from the tip, barrel. you have to hold it only using one finger and one thumb and one finger, and you have to lift it this way, straight, without the entire rifle bending downwards from the other end. And all you can hold the rifle with is just two fingers, your thumb and your index finger. That's it. मैंने उस पर कम से कम 15-20 मिनट ट्राई किया, मेरे पसीने छूट गए, बट ऑनेस्टली मुझसे हो नहीं पाया। एंड देयर वाज वन मोर थिंग, दिस सीम्स टेरिबली सिंपल टू डू, बट इट इज सो डिफिकल्ट। यू हैव टू टेक योर हैंड लाइक दिस, probably keep it here like this, and then I'm not even do this. Many people are going to try this after watching this, but all you have to do is touch your thumb right near your pinky finger. But after doing this, and trust me, I think जो लोग देख रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, because मैं भी नहीं कर पाया था. Such a simple thing. So what is this level of fitness that people in the cities cannot attain? But ये कैसे है सर? मतलब what is this fitness about? How? कुछ नहीं, खुद पे काम करो आप, है ना। एक मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जितने भी ना, सी पर्सपेक्टिव की बात है, यू नो, अपना अपना नजरिया है। जैसे इम्प्रॉम्प्टू मैंने कल परसों किसी को टॉपिक दिया, मैं स्पीक अबाउट लुंगी एंड कच्चा, ठीक है, लेक्चरेट दो, लेट मी सी हाउ रैंडम यू कैन स्पीक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएसबी में? नो, नहीं, आपको एक लेक्चरेट मिलेगा 3 मिनट बोलने के लिए, बट मैं ऐसे रैंडम कुछ भी देता हूँ, मैं चलो स्पीक, आप में दम होना चाहिए, आप गोबर भी बोलोगे, अब देखो मैं 3 मिनट के अंदर क्या कंटेंट डिलीवर करता हूँ। इम्प्रॉम्प्टू अपना अपना नजरिया है। एक आदमी गोबर से कहता बदबू आती है, पर दूसरा आदमी उसी को गर्म करेगा, ठीक है, और बोलेगा पूजा के लिए मुझे भैया ये है ना थोड़ा सा चाहिए, पूजा के लिए रखेगा, ठीक है। एक आदमी बोलेगा कि गंदा है ना, इसको फेंक दो, दूसरा आदमी कि भैया दिस इज ए वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसका पूरा लेप लगाएगा, उसमें कोई मक्खी मच्छर नहीं आएगा, और घर का सैनिटेशन एंड हाइजीन का स्टैंडर्ड ऊपर कर देगा, ठीक है। जिस आदमी को बदबू आती है वो नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जो 8 रुपए में एक उपला खरीदते हैं आज की तारीख में अमेजोन पे। गोबर बिक रहा है सर, वैल्यू तो गोबर की अमेजोन पे भी है, और जिसको नहीं दिख रही वो सामने पड़ा है, उसको भी डिस्कार्ड करेगा। सो मैंने इम्प्रॉम्प्टू लेक्चर ऐसे दिया कि किसी भी चीज में बोल के देखो ना, कंटेंट नहीं है तो पैदा करो। एंड यू नो हु स्पोक, द गाय हु सेड कि यू नो
मैं ड्रग्स में था बहुत बुरी तरीके से, बट मैं तो जी अच्छे काम करता हूँ सर जी। उसने दिया, यू नो व्हाट इज इट, कहता है मेरे को अंग्रेजी तो नहीं आती सर, मैं हिंदी पंजाबी तो बोल दूं। मैं बोलो जी। कहता है कच्छा जो होता है ना वो टाई शर्ट पैंट जो पहनते हैं उसके साथ पहनते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बड़े लोग पहनते हैं, और उसके अलग अलग ब्रांड्स भी होते हैं। लुंगी का कोई ब्रांड नहीं होता, लुंगी देसी चीज है, और जैसे देसी चीज है तो देसी लोग यूज करते हैं, Yeah. और जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना वो लुंगी पहनते हैं। तो लुंगी पहनने वाला आदमी मुझे लगता है मेहनती होता है? नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ तोड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, बट बात तो पते की बोल ही गया वो बंदा। तो इतना तो उस आदमी को भी समझ में आया जो ड्रग्स में था बुरी तरीके से, एंड ही वॉलंटियर्ड। कहता है सर मैं बोलूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। मैं आजा, इंग्लिश बोलने से तो आज तक कोई मजबूत आदमी नहीं बना। बतेरे लोग Yeah. जो इंग्लिश ठोके जा रहे हैं बट काम की बात तो घंटा नहीं करते। तो देसी आदमी है बट देसी बात करके गया, बट कुछ सेंस दे के गया लोगों को कि देसी चीज है, प्रोडक्ट देसी है, देसी लोग यूज करते हैं, और जो यूज करते हैं वो मेहनती होते हैं। इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू मी, Lot of sense. यू नो। The most common problem that people face nowadays is depression, anxiety, and on probably the smallest things, right? मतलब ऐसी कोई दिक्कत होती भी नहीं है, but they suddenly get anxious, their heart rate goes up, and एक ना ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि आई थिंक दे आर अब्यूजिंग दिस वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के नाम पे दे आर गोइंग फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ डिप्रेस्ड पर्सन, विच आई थिंक इज एक्चुअली हार्मिंग you more than it is benefiting you. True. Absolutely. So how do we deal with situations like that? And ये क्या प्रॉब्लम है? पहले बात तो ये क्यों इतना बड़ा हो रहा है? Why are so many people coming out and being proud and accepting an identity which doesn't rightfully belong to them? Probably they are depressed, probably they are not, but in most situations it's a very small thing that's bothering them, और वो उसको इतनी बड़ी बना देते हैं। How do you exactly deal with something like that? यार आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। You want to stay depressed, please stay so. You want to die with anxiety, please die. I'm the last person, मेरे को तो कोई कंडोलेंस नहीं आती, ठीक है। बड़ा सिंपल सी चीज है, जिसको देखो शौक है। मैं दवाइयों के भरोसे जिंदा रहना है, नो सर। मैं डॉक्टर के भरोसे जिंदा रहना है, नो सर। तो मैं फिट क्यों नहीं करता अपने आप को, काम क्यों नहीं करता? सर मुझे एंग्जाइटी है। मैं अच्छा आ जाओ जरा सामने, तुझे सर मुझे डिप्रेशन है, तू भी आ जा सामने। लाइफ में ना वन शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू फाइंड फोकस एंड फाइंड आंसर फॉर व्हाई। इफ यू फाइंड द आंसर फॉर व्हाई, योर हाउ बिकम्स ईजियर। तो पहली चीज मैं ये पूछता हूँ, है ना, कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाई? सर वो है। मैं नॉनसेंस बातें नहीं करनी। मैंने पूछा व्हाई। भाई इलाज तुझे चाहिए, बीमार तू है तो मुझे कारण तो बताएगा ना। एंग्जाइटी किस चीज की है? मैं क्या करते हो 9th में 10th में, बिजनेस नहीं, बीवी बच्चे नहीं, कोई बड़ी साला प्रेशर नहीं है ना। एक फद्दू चीज, क्या ड्यूटी है तेरी? पढ़ाई करना। और दूसरा सेहत ठीक रखना। तीसरा क्या काम है भैया तेरे पास? सर कुछ नहीं। तो एंग्जाइटी किस चीज की, समझाओ। क्या सर वो मतलब ऐसा हो जाता है? मैं कारण बताओ ना। पढ़ाई से एंग्जाइटी हो रही है तो पढ़ाई अच्छे से कर लो, नहीं समझ में आती एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, सीनियर से बात कर लो, ट्यूशन क्लासेस ले लो, बट कर लो इलाज। पढ़ाई की वजह से एंग्जाइटी आ रही है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट शिट। फिर मारूंगा मैं जूते, मारूंगा 10, गिनूंगा 1, ठीक है। एंग्जाइटी से मुझे बोलने में दिक्कत होती है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो फद्दू आप हो, क्यों उड़ा रहे हो मजाक? सीख ले। माँ के पेट से बोल करके थोड़ी आया था सीखना, बाहर आके सीखा है ना। बट यू आर मेकिंग ए बड़ी फद्दू चॉइस। अच्छा बोल सकता है लेकिन गाली देता है तू, ठीक है। गाली देता है ना, बोले हाँ सर देता हूँ, तो मैं उसमें कुछ बढ़िया है? मैं इससे अच्छा भगवान का नाम ले ले तो बोल रहे राम राम, ठीक है। कुछ और नाम ले ले जो तुझे समझ में आता है। बट वाई यू आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज? फद्दू चॉइसेस आप करोगे, एंग्जाइटी भी आपको। मैं गजब आदमी यार, सारे प्रोविजन सारी सुविधाएं तेरे पास हैं। आई कांट इवन आस्क यू क्वेश्चन, मैं भी तो चुकेगा मुझसे, ठीक है। एंग्जाइटी किस चीज की समझाओ, और डिप्रेस्ड किस चीज में है? सर मैं ऐसा करता हूँ, मुझे विड्रॉल होता है। मैं अगर गलत आते छोड़ दूँ, सिगरेट छोड़ दूँ, ड्रग छोड़ दूँ, तो मुझे विड्रॉल होता है। मैं अगर विड्रॉल हो रहा है तेरे को तो एडवांस क्यों नहीं कर लेता? कर ले एडवांस कि भाई मुर्जा संभालूंगा। तेरे को आदत है विड्रॉ करने की, फिर कंप्लेन मत कर बड़ी फद्दू। यू डिजर्व दिस। लाइफ आपको वो नहीं देगी जो आप, है ना, यू नो व्हाट यू वांट। लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, बट दिस इज व्हाट यू डिजर्व। Yeah. मैं जिम्मेदार कौन है? बोला सर मैं। तो इसमें मैं कौन जिम्मेदार है आपकी सिचुएशन के लिए? आपको डिप्रेशन आ रहा है तो इसमें किसमें, बीजेपी का आता है? बोला नो सर, मैं कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। बोला नहीं सर, मैं कौन है फिर? बोला सर मैं। तो मैं इलाज कौन करेगा? बोला सर मैं कब से करेगा? बोला सर आज से। मैं तो आज से करेगा? बोला सर अभी से काम शुरू करता हूँ। तो कर ले। 2 दिन के बाद में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो काम करो ना यार। कंप्लेन करोगे तो क्रिएट कर नहीं पाओगे लाइफ में। आपको आदत है ये सब करने की। सो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या रीजन जो भी हो,
वाई, फाइंड आउट द रीजन वाई। लोग पूछते हैं किससे है, कब है, सुबह कितना होता है, सब मुझे ऐसा महसूस होता है, वैसा महसूस। अच्छा ठीक है, ये इसके लिए ये दवाई ले लो। नींद नहीं आती, इसके लिए ये दवाई ले लो। नींद नहीं आती, आ जाओ यार मेरे पास आ जाओ। यहाँ बहुत लोग सब मुझे नींद नहीं आती, वो नहीं आती। मैं कोई बात नहीं, सेवा का मौका तो दो। शाम तक एक बार थोड़ी एक्सरसाइज कराई, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मैं कहाँ पड़ा, मैं तेरे नींद नहीं आती थी सर, थोड़ा आधा घंटा और सोने दो। मैं तुझे नींद नहीं- सर अभी बहुत आ रही, सोने दो। खाना भी तभी दूंगा जब काम करोगे, सोने भी तभी दूंगा जब कमाओगे, फ्री में तो कुछ भी नहीं दूंगा। यार एंग्जाइटी डिप्रेशन है ना यार, कोई नेशनल इशू नहीं संभाल रहे। इस हिसाब से तो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है, कोई देश की है ना अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, पूरे जिला संभाल रखा है, कमांडिंग ऑफिसर है, पूरी बटालियन संभाल रखी है। हर आदमी को डिप्रेशन से मर ही जाना चाहिए। एमएलए नेता देखो कितने खुश रहते हैं, ठीक है, लोगों ने चुन के बनाया, 50 तरह के वादे किए, कोई टेंशन नहीं, एक भी वादा पूरा होगा नहीं होगा। गजब एकदम कहता है वाह मुझे तो नींद बहुत अच्छी आती है। वो 3 आदमी की नींद निकालता है और इतना सोता है कि सोते ही रहता है पूरे टेन्योर में, एक भी काम नहीं करता। तब भी कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आती। दे आर रोल मॉडल, लुक एट देम यार। एब्सोल्युटली, ठीक है, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पूरी इंडियन आर्मी संभाल रखी है, ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे हैं डिप्रेशन की? नहीं। कोई फील्ड में है, कहीं अटैक हो रहा है, कहीं मिलिटेंट आ रहे हैं, कहीं पे कोई अपना आदमी शहीद हो रहा है, वो ले रहा है डिप्रेशन? तो फिर किस बात का डिप्रेशन? ऐसा क्या मतलब कर रहे हो? अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, ब्लडी दैट इज द ओनली रीजन। या एक आदमी है जो महकमा संभाल रहा है, कंपनी संभाल रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, खुद को नहीं संभाल पा रहे, गलत हैबिट में आप हो, बेटिंग आपने करी, पैसे आपके चले गए, लाजमी है डिप्रेशन आपको आएगा। जिम्मेदार आप हो, सिचुएशन आपने क्रिएट करी, सॉल्यूशन भी आप निकालोगे। डिप्रेशन क्यों है आपको? मैं तो पहले ही पूछता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है तो व्हाट यू डन अबाउट इट? सर कुछ नहीं किया। मैं रोने के सिवाय, डॉक्टर के पास जाने के सिवाय और क्या क्या वो बता। कैसे कुछ नहीं किया? आ जा फिर ग्राउंड में। मैं बख्शता नहीं हूँ यार, मैं बहुत ब्रूटली तोड़ता हूँ लोगों को। पहले मेरे को जवाब चाहिए है ना, बाद में दूंगा तेरे को। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत के जिम्मेदार आप हो। आपकी लाइफ में जो होता है आप जिम्मेदार, मेरी लाइफ में जो होगा मैं जिम्मेदार। सॉल्यूशन आपकी लाइफ में आप, मेरी लाइफ में मैं। Most things are very simple. I think the mind makes it complicated, and when it's empty, that's why they call it यार इट private इज mind. समथिंग लाइक ना कि लाइफ इज, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज डैम डिफिकल्ट टू बी सिंपल। Yeah, रहा नहीं जाता लोगों सिंपल। yeah, कॉम्प्लीमेंट रायता आपने फैलाया, रायता समेटोगे भी आप। yeah, बाहर से ना हर जगह भैया भगवान लॉर्ड कृष्ण है, लॉर्ड जीसस तो आएंगे नहीं। yeah, रायता आपने फैलाया, सवाल लो खुद। yeah. ठीक है, So there is this person that I heard him speak on something which was very interesting. It was called the difference between perspective and perception. I think his name is Andrew Bustamante, and he was an ex-CI officer. So what he said that most of the people, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, they believe in perception कि मुझे ये लग रहा है, मेरा नजरिया ये है, hence मैं ये करूँगा. I think that becomes a very limited range of reasoning. ज़्यादा उसके beyond mind खुल नहीं पाता. What he said is that we need to move slowly from perception to perspective. You seem like a person who only believes in perspective. That is also called being accommodative in a very simpler language. But I think वो बहुत oversimplify हो जाएगा. Perspective जो मैंने आपको observe किया है, I feel that you understand the person better than the person understand themselves, because somewhere either you've been in those shoes before or you are currently stepping in those shoes and thinking from that person's perspective, and you immediately get the answer to that. So how do you do that, sir? What do you? ये परसेप्शन पर्सपेक्टिव दोनों अलग चीजें हैं ना। Yeah. परसेप्शन तो आदमी है ना, देख करके 4 लोग बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये फद्दू है, तो आप भी वही भाषा बोल देते आदमी कि यार ये वाकई में खराब है ना। Yeah. बैठा बैठा आदमी वहां से फतवा जारी करता है, पूरी दुनिया पागल है। अच्छा सर आप भी शाने हो, वेरी नाइस। ये तो परसेप्शन है लोगों का। अभी आपके सामने एक 13 साल के बच्चे ने बोला कि मुझे पेरेंट्स की सारी बातें गलत लगती थी, पेरेंट्स बहुत गलत लगते थे, कोई चीज ठीक नहीं लगती थी उनकी। दैट वाज हर परसेप्शन। Perception. बट यहाँ पे मैंने मिथ तोड़ा उसका। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन अभी मुझे पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं तो मुझे उनकी बात ठीक लगती है, मैं उसमें अच्छा ढूंढती हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छे लगते हैं। ये उसका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव गिव्स यू क्लैरिटी, परसेप्शन इज ए फिक्सेटेड ओपिनियन, यू नो, बाइस्ड। 10 लोगों ने एक की बुराई करी, आपने भी कर दी। अब यहाँ पे जितने हैं 100% सबके पास रीजन है। एक ने बोला कि मेरे आंसू ना बहुत वेस्ट लगते थे मुझे, यहाँ करके समझ में आया कि आंसू में बहुत वजन है, एक बार गिर गया तो हल्का महसूस होना चाहिए, हर रोज नहीं रो सकते हैं, और मेरे आंसुओं की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। द वन हु लॉस्ट हिज मदर, ही सेड ना, दैट इज पहले परसेप्शन था, अभी पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव ऑलवेज ब्रिंग्स क्लैरिटी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन थिंग्स व्हाट यू सी अपने अराउंड, है ना। आपके पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। पहले पर्सपेक्टिव खराब था, बाद में पर्सपेक्टिव है ना अच्छा हो गया।
पहले पर्सपेक्टिव कमजोर था, अभी पर्सपेक्टिव मजबूत हो गया। Yeah. पहले पर्सपेक्टिव में बहुत कंफ्यूजन थी, अभी पर्सपेक्टिव क्लैरिटी आ गई। Yeah. No? Yeah. How does that translate to an actual live situation in the army? Let's say there's a situation where you have to read the situation through multiple angles. So, how do you form a perspective? How do you decide between the lesser evil, I might say, and how do you strategize in that situation? ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना, इंसान को खुद को और अपने साथ वाले लोगों को ना सिंपल तरीके से इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ फौज का। एक बड़ी अच्छी किताब है पढ़ना, व्हाट जर्नल्स आर मेड ऑफ। मिलेगी नहीं वैसे तो जल्दी सी, है ना, मिलेगी तो फिर लोग बोलेंगे अरे यार बहुत महंगी है ना। अमेजोन पे भी बहुत रेयर मिलेगी, व्हाट जर्नल्स आर मेड ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ना। बहुत कम बुक मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को। Yeah. एक मैं बोलता हूँ जिसे है ना कि ट्यूजडेज विद मौरी पढ़ना। Tuesdays with? मौरी, दैट्स अ मैंडेटरी थिंग। यहाँ पे जितने स्टूडेंट आते हैं ना सब साथ लेके आते हैं, नहीं होती तो मैं देता हूँ Wow. एंड पढ़ते हैं वो लोग। बाय द टाइम दे फिनिश द बुक में क्या हुआ, कैसे किताब में आप देख रहे हो, मैं अच्छा देन दिख रहा है लॉट में, बट एंड ऐसा नहीं चाहिए जैसे किताब में है। आई वांट अ बेटर एंडिंग, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, पोस्ट में गया, यंगस्टर था उस समय, कंपनी का मोटर, यू नो। तो ब्रीफिंग हुई, सीनियर था मेरे से देने वाला, उसने बोला कि यार ये कंपनी का ऐसे हिसाब किताब है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बंदे के बारे में बताया, फिर बंदा मैंने देखा डिप्रेस है ना, कि किनारे में खड़ा हुआ था, नॉट वेरी इंटरेस्टेड ऑल्सो। उसने बोला मैं भी क्या हाल है, कहता जैन साहब, मैं जैन। मैं इस बंदे को क्या हो गया, मैं ठीक है सब घर में, कहता ठीक है। तो मैं कौन है, अबे फद्दू है छोट। तो मैं सब फद्दू तो अगर अपना ही बंदा है फिर फद्दू कैसे हो सकता है ना। मैं है कौन, बोला कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है, आई नॉट नेम हिम। उसमें आई वाज कैप्टन, बट मैं उसको 2-3 बार देखा तो अगर कोई गए साथ में तो रूड था, ऐसे बात कर रहा था ना, आई कुड मेक आउट कि इज नॉट हैप्पी, इज एरोगेंट टाइप, थोड़ा रूड है। तो बोला एक फालतू है, कुछ नहीं, बोला इसको यहीं रखो इधर, है ना, इसको लंगर पे लगा रखा है, सब्जी उब्जी काटता रहता है, यही काम है इसके, बाहर नहीं ले जाना इसको, ही इज नॉट रिलायबल, इज नॉट वेल डिसिप्लिन। मैं क्यों, बोला किसी काम करें भाई, तो कुत्ते को रोटी के डालने के लिए बोल दे, वही नहीं डालेगा, इतना अकड़ू है। ओके, तो शाम को मैं बाहर निकला, ठीक है, तो रोटी मंगाई मैंने, डॉग तो थी कंपनी में, देन आई कॉल्ड हिम विद हिज नेम, ओए उधर, मैं तेरे से सुबह मुलाकात नहीं हो पाई यार, मेरा मेरा नाम ये है और ये है, मैं आपकी कितनी सर्विस होगी, बोला इतनी। मैं गुड यार, मैं तो दूर से देख के लग रहा है ब्लडी पंप अप है ना कि बंदा तो ये है, बट मेरा बड़ा मन था इससे बात करने, तेरे बात नहीं हो पाई। तो उसने बोला है पंप अप, अरे यार बड़ी क्या स्मार्ट, बड़ी बेयरिंग है, बड़ी गुड जॉब यार, है ना। मैं पहले सोचा था एक काम था छोटा सा, मैं किसी को बता देता हूँ, बट किसको बताऊँ मैं। कहता है मेरे को बता दो, मैंने कहा यार मेरा सोच तो रहा था तेरे को बता दूं, बट तू बोले क्या साहब ये फद्दू सा काम बता दिया आपने। बोले ना ना बता दो अब क्या है, देख लेते हैं। मैंने कहा ये रोटी डालनी है, उसको डालनी थी, बट वो डॉग ऐसे है ना, मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ बहुत खतरनाक टाइप है, मुझे लगा काट कूट लेंगे, इसके पास भी कुछ जा नहीं रह जाता। कहते ये काम, ये तो बहुत छोटा सा काम है। मैंने कहा मेरे को लग रहा है तू कर देगा, बट तेरे को बुरा नहीं लग जाए यार, दोस्त रहने। बोले क्या यार कुत्ते को बोल रहे हो, और बोला क्या बात कर दी साहब, मेरे को दो आप, मैं दिक्कत क्या आता। वो गया, उसने डॉग के पास में गया, उसको अच्छे से रोटी खिलाई, बोला दिखाई मुझे ऐसे कि बोले देखे देखो मैं डरता नहीं हूँ टाइप। बोला हो गया साहब ये तो काम, मगर गुड यार, मेरे को लग रहा था मैं कुत्ता तेरा बड़ा फ्रेंडली है। कहता अपना ही है साहब, ये तो कोई खास बात नहीं, मेरे को बता देना आप जब भी देना खाना, मैं डन। फिर शाम को मैं बाहर जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, मैं टू गो विद अस, तो उसके लिए भी सरप्राइज था। बोले मेरे को जाना ऑपरेशन में। मैं क्यों, हथियार चलाना नहीं आता। बोला आता आता है साहब, हथियार चलाना आता है। मैं फिर आया, फिर चलना बाहर, ये सब्जी काटने में मजा आ रहा है। बोले नहीं साहब मैं मतलब मेरे को, मेरी थोड़ी 2 रेडिंग एंट्री है, मैं रेडिंग एंट्री मतलब पनिशमेंट मिली हुई है। मैं फिर तो हमेशा खराब ही रहेगा, मौका है कर ली तू। कहते नहीं साहब मेरे को, फिर मेरे को जीसू नहीं बताया, बोले साहब ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिन हल्का है, छोड़ देते हैं। मैं मौका तो दो उसको बंदे को, कितना ही खराब होगा, जहाँ 2 मिली पनिशमेंट, एक और सही, और 3 पनिशमेंट के बाद में घर। 3 मौके मिलते हैं फौज में, मैं बिठा लूँ साथ में, तो जिस जान लगे भाई काम कर, मैं तू मेरी क्यूआरटी में आ जा। बोले हैं सर, क्यूआरटी पार्टी स्टेज विद मी, बाकी तो फिर फौज जा ही रही थी। कहता आपके साथ आ रहे, मैं ब्लडी गजब आदमी, आ जा चलते हैं साथ में। तो बोला चलूँ साहब, मेरे आ जा शिकार करके आते हैं। साथ गए हम लोग, ऑपरेशन में गए, ठीक है। जिसको मतलब लेबल टैग कर रखा था ये बंदा फद्दू है, किसी काम का नहीं है, ड्रिंक ले लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, थोड़ा सा भरोसा दिखाया इसे, साथ में लेके गया। एंड दैट दिन द ऑपरेशन द फर्स्ट कैच वाज थ्रू दैट गाय। तो वहां पे दौड़ के, मैं क्या हो गया, तो बंदा दौड़ के आ रहा था, उसने फायर भी नहीं किया, हथियार उल्टा पकड़ा उसने, वो तेजी से दौड़ के जिस लेन से निकल रहा था वो स्टार्टिंग दैट करके ऐसे मारा उसने, उसके मुंह पे लगाए, 2-3 दांत गए, होठ फट गया, और पकड़ के बड़ी दैट उसको पीछे हाथ करके पकड़ के बैठा हुआ था। बोले साहब, मैं क्या, बोले एक तो दबोच रखे साहब इधर ही है, मैं तो ठोका नहीं तूने इसको। बोला जरूरत नहीं पड़ी साहब, बट मारा मुंह पे, बड़ी ये रहा। बोले गाड़ी में डालो इसको, मैं डाल,
तो उसको पकड़ के जोश टाइप था, मैं भाई बिना राउंड फायर करे गटरी बांध के दिए बैठा हुआ एक की। वापस आने के दिन एवरीबडी क्लैप फॉर हिम, मैं गुड यार, क्या जबरदस्त बड़ी काम किया था, क्या जोश टाइप वाले ना, बढ़िया। अगली बार तो लगा के खुद, ओए मैं ऑपरेशन जाऊंगा, मेरे को लेके गए साहब, बोले सब टीम चलो आपके साथ, आया। मौका दोगे तो आदमी चेंज होगा यार, Yeah. है ना। एक बार फेल हो गया एग्जाम में, तू तो फेल ही होता रहता है, तुझसे कुछ नहीं होता, तो कहाँ आदमी इंप्रूवमेंट करेगा। Yeah. मैंने आपके सामने बोला, मैं रोज गलती करो, रोज भरोसा तोड़ोगे, अगले दिन फिर मौका दूंगा, फिर भरोसा करूंगा, देखते हैं कौन हारता है पहले। तुम लोग गिव अप करते हो, आई डोंट गिव अप ऑन पीपल, जल्दी से नहीं करूंगा नहीं, इनफैक्ट जल्दी क्या, आई वोंट गिव अप। एड्रेस तो कुछ है नहीं, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, तो इतना कमजोर मैं अपने आप को क्यों प्रूव करूं Yeah. कि आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन समवन, है ना। Sir, the मौका देना exactly. पड़ता है। Yeah. So that example that you gave कि उस बंदे ने सिर्फ वो बंदूक लेके उसके मुंह पे मारी, एंड आई कैन इमेजिन ऑल ऑफ दैट। उससे मेरा एक क्वेश्चन आया था, जो आई एम श्योर बहुत लोग का होगा, एंड इस पे बहुत डिस्कशंस होते हैं, बट किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में। हाँ, What has been your favorite weapon, sir, and why? And there could be multiple, there could be certain weapons जो आवाज नहीं करते, or maybe something like a knife or anything. वेपन, Yeah. और अगर तू weapons. मेरे हिसाब से पूछेगा तो दो मुझे समझ में आते हैं मोटे तौर पे। एक है आपका योर हेड एंड योर हार्ट। Wow. अगर आपका दिमाग मजबूत है, माइंडसेट, और दिल मजबूत है ना, एंड दिल में कंपैशन भी है, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू कैन टेक बोल्ड डिसीजन यहाँ से, एंड यू कैन फील पेन फॉर समवन, है ना। एंड आप आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करो, वेदर जूनियर है ना, कलीग, जो भी हो आपके साथ में। दिमाग ऐसी चीज है ना, यू डोंट गिव अप इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन। एंड ऑब्वियसली यार, तू खुद सोच, लड़ाई में ना कितने एग्जाम्पल्स हैं, नो, परमवीर चक्रा, महावीर चक्रा, शौर्य चक्रा, कितने सारे लोग हैं जिनको बुलेट इंजरीज लगी हैं, कहीं तो बॉडी में अभी भी कैरी कर रहे हैं। 2 गोली लगी है, 3 गोली लगी है, बट बेर भी बंदा किधर जाता है, सामने जाता है। तो व्हाट डू थिंक, That's the सबसे mind, बड़ा that's the वेपन heart. आप ही हो, Yeah. योर हेड एंड हार्ट। अगर माथा मजबूत है ना आपका और दिल कड़क है बिल्कुल, यू विल गो टू एनी एक्सटेंट, यू नो। जैसे मेरे उसमें लिखा हुआ है, वी गो इनटू अननोन टू डू द इम्पॉसिबल। व्हाट इज इट, जो हेड एंड हार्ट ओनली, यू नो, Yeah. कि भेज के देखो, जो काम कोई नहीं कर रहा हम करके दिखाएंगे। एंड व्हाट इज द सेकंड कोट इन माय ऑफिस, वी हैव डन सो मच फॉर सो लॉन्ग फॉर सो लिटिल दैट नाउ वी आर क्वालिफाइड एंड कैपेबल टू डू एनीथिंग विद नथिंग। For कुछ भी as मत long. दो, काम दो एक बार, फिर देखो आप। सो यार, हथियार तो है ना, अलग अलग नाम है, फैंसी, अलग अलग कंपनी के ओरिजिन है, अलग अलग कंट्री के हैं। आज एक है, कल दूसरा, परसों तीसरा, है ना, चेंज होते रहेंगे। बट दिमाग और दिल, दिस इज प्योरली इंडिजिनस, आपकी प्रोडक्ट है, यू आर द मैन्युफैक्चरर। Yeah. जितना काम करेगा उतना दिमाग तेज होगा, जितना करेगा उतना दिल मजबूत होगा। दिस इज द बिगेस्ट वेपन। Wow. एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से द बिगेस्ट वेपन इज मेन। Yeah. हथियार जैसा भी हो, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। अगर बंदे काम का नहीं है, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन वो किसी गरीब को या इनोसेंट को ठोक देगा। Yeah. बट आखिरी मजबूत आदमी है ना, इसका दिल दिमाग काम करता है और जिम्मेदार है, तो हथियार हाथ में है, लेकिन टारगेट को फिर भी क्लोज आने देगा, सो दैट यू डोंट मिस ऑन द टारगेट। फियर पे भी कंट्रोल रखेगा, एंड सामने आएगा ना तब एक छोटा छेद करेगा, बट पीछे से इतना खोद देगा। आनंद फानंद में 50 गोली फायर नहीं करेगा, ओनली 1, एंड It'll do the job. job is done. Fire for effect, you know. And men are the best weapon, potent weapon. रस्सी कितनी टांग दो, चौपर कितने उड़ाने, तब भी आदमी चाहिए। बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ गिर रही हो, कुछ भी हो, बट फौजी आदमी हर जगह पहुंच जाता है, काम तब भी करके दिखाता है। ठीक है, देश को 2 अलग कर दिया, बट जान कितने लोगों की गई, कितने लोग शहीद हुए, है ना, अंदर घुस घुस करके मारा, किसने मारा, इट इज द मेन ओनली। Yeah. तो जो इंसान है उसकी वैल्यू है, नो, मेन आर द मोस्ट पोटेंट वेपन। दे विल नेवर से नो फॉर एनीथिंग। हम बता दो, हो जाएगा साहब, खा सकते हो जाओ साहब। मेन आर द मोस्ट पोटेंट वेपन। So ये जो एक ब्रदरहुड होता है बिटवीन सोल्जर्स इन द आर्मी, राइट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अप टू द लेवल वेयर यू कैन ट्रस्ट, मतलब आपको भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर, इवन विथ योर लाइफ, यस, राइट। तो ये कैसे बिल्ड होता है, ये इतना पोटेंट कैसे होता है, एंड इसकी क्या, मतलब हाउ डज दैट हैपन? इट हैपेंस ऑटोमेटिकली यार, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कैप्सूल फॉर दिस, या कोई मंत्र फॉर दिस। आप साथ में रहते हो, साथ में खाते हो, साथ में रगड़ा खा रहे हो, साथ में पनिशमेंट ले रहे हो, साथ में, है ना, आप मजे कर रहे हो, वट एवर यू डू टुगेदर। साथ में जहाँ आदमी रहता है, खाता है, पीता है, तो यार हो गई, Yeah. यू नो, क्यों नहीं होगा, इट ऑलवेज हैपन। या ठीक Yeah. है कुछ तो है फौज में ना, वर्दी है, आपका एम है, बट द बिगेस्ट थिंग इज पर्पस, यू नो। या पर्पस इज वन थिंग विच, है ना, बाइंड्स यू टुगेदर। या वेदर यू आर इन पीस, वो 3 छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना जो लिखे होते हैं, नाम, नमक, निशान। Yeah. अब लोगों को उसका भी पता नहीं है, लोग है ना इसको भी एक फैंसी वर्ड की तरह यूज करते हैं, नाम।
आपका नाम क्या है? राजीव बहरवान। आपका नाम क्या है? जयदीप पेंडके। जयदीप। अभी आगे लिखा हुआ है नेम टैग पे जयदीप, यहाँ लिखा है बहरवान, लेकिन पीठ के पीछे अपनी यूनिट का नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा है 26 राजपूत, ठीक है, मेरा लिखा हुआ है 51 गोरखा राइफल्स। जो पीठ के पीछे लिखा है दैट नेम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज ऑन द चेस्ट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। The one written on my back. हाँ, वन रिटन ऑन द बैक। Yeah. सो जो पीछे लिखा है उसके अंदर 1200 लोग आते हैं, कमांडिंग ऑफिसर से लेकर के यंगेस्ट रिक्रूटेड जवान, Yeah. ठीक है, उस नाम का वजन इतना है। बट अब मैं कहता हूँ उसके ऊपर एक और नाम लिखा हुआ इंडियन आर्मी। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम? Indian Army. इंडियन आर्मी। सो पहले इंडियन आर्मी आती है और उसके बाद में फिर यूनिट आएगी और उसके बाद में आप आओगे, यू आर द लास्ट प्रायोरिटी भाई, ठीक है। तो नाम की भी अलग अलग वेरिएशन है। इंडियन आर्मी बोल दिया तो उसके बाद में चाहे गोरखास हो, ग्रेनेडियर्स हो, नागा हो, ठीक है, कुमाऊं हो, आर्मी सर्विसेज कोर है, ऑर्डिनेंस, पोस्टल सर्विसेज, इंजीनियर्स, एएमसी, जो भी हो, एवरी वन इज टुगेदर ऑन बोर्ड। Part of नाम में Indian इतनी Army. गजब की ताकत है, यू नो, Yeah. सारे एक साथ आ गए, Yeah. है ना। बाकी लोग बना लेते हैं कंपार्टमेंट, है ना, रेजिमेंट वाइज डेज बनते हैं सारे, बट देयर इज आर्मी डे ऑल्सो। Yeah. तो नाम की वो वैल्यू है, ठीक है। नमक, आप जहां पे रह रहे हो साल में 2 महीने आप छुट्टी जाते हो, ठीक है, 90 दिन चले गए ज्यादा ज्यादा, बट बाकी टाइम कहाँ पे रहते हो? यूनिट में। नमक किधर खा रहे हो? Unit. यूनिट में खा रहे हो। सो उस नमक की वैल्यू है, आपको अदा भी करनी पड़ेगी। निशान, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा रखा है यूनिट का निशान, ठीक है, बट उसके बाद में आता है आर्मी का भी निशान। Indian Army. निशान ऑल्सो हैज गॉट लॉट ऑफ दिस थिंग। उसके बाद में आ जाता है झंडा, वो सबसे ऊपर। झंडा आ गया तो उसमें आर्मी भी आ गई, एयरफोर्स भी आ गई, नेवी भी आ गई, कोस्ट गार्ड भी आ गई, पुलिस भी आ गई। सिर्फ एक झंडा आप खोल दीजिए, हवा में लहराने दो। उसका चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से है, चाहे सिविल डिपार्टमेंट में है, एक सिविलियन आदमी है, फौजी आदमी है, सबके हाथ ऐसे हो जाएंगे और सारे ऐसे खड़े हुए हैं, गर्दन बार, चेस्ट अप, चिन अप, एंड पूरा 56 सेकंड तक वो आपको नेशनल एंथम हिलने नहीं देगा, यू नो। Yeah. सो इट इज दैट पर्पस, दैट आइडेंटिफिकेशन यू रिलेट विद। Yeah. जो कमजोर आदमी है ना, वो छोटे लेवल, मुझसे बाहर ही नहीं आएगा, मैं फलानी यूनिट से हूँ, मैं उस यूनिट से हूँ, हमारी यूनिट बड़ी खास, तुम्हारी यूनिट फद्दू। हम महान काम करते हैं, आप कमजोर काम करते हो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, यू नो। Correct. Correct. The sense of belonging हाँ, जो होता है. बिलोंगिंगनेस, अब आप कितना बिलोंग करते हो, आपकी मजबूत कितनी है आइडेंटिफिकेशन, वो आपके ऊपर है। एंड मैंने सबसे ज्यादा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है या जो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, मैंने हमेशा आर्मी के लोगों के बीच में ही देखी है। अरे पूरी हमेशा। कंट्री में देख ले यार, हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूँ ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई एडवाइजरी थोड़ी आती है कि कल सारे 15 अगस्त मनाएंगे, बट लोगों में नशा 48 घंटे पहले शुरू हो जाता है। गरीब से गरीब आदमी भी एक झंडा बेचने के लिए रोड पे आ जाते हैं, ठीक है तो सिर्फ झंडा, वो बात है, लोग जिम्मेदार नहीं है, कल को इधर उधर गिरा पड़ा रहता है। बट तू सोच, एक झंडा जिसके अंदर सिर्फ 3 कलर है, एक चरखा है, उसमें इतनी गजब की ताकत है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में हर आदमी खरीदता है। कोई गाड़ी के आगे लगाता है, कोई साइकिल पे बांधता है, कोई अपने ऑटो रिक्शा के बाहर लगाता है, कोई गाड़ी में पीछे चिपकाता है ना, लोग हाथ में लेके भाग रहे होते हैं। बट रोड के ऊपर खड़े होकर के उस झंडे को इतना बेच देते हैं लोग कि कई लोगों की रोजी रोटी का समाधान हो जाता है एक झंडे की वजह से। वेरी पावरफुल, यू नो, फीलिंग कि एक झंडा है जो बोल नहीं सकता, बट वो झंडा बहुत लोगों के घर में रोजी रोटी लाता है 2-3 दिन, है ना, प्राइड लेकर के आता है, रिस्पेक्ट लेके आता है। और सबसे मजबूती बात कि एक झंडा है तो वो बांध देता है 1.4 बिलियन लोगों को। या दैट सेंस ऑफ पर्पस, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना, दिस इज हाउ इट कम्स। एक झंडा जो बोल नहीं सकता, तो आप में काबिलियत होनी चाहिए। अगर फौजी कमांडर हो, आप में दम है, काम करने का तरीका ठीक है ना, आपका भाव मजबूत है, तो क्या नहीं कर सकता एक सीएचएफ, क्या नहीं कर सकता एक कंपनी कमांडर, और क्या नहीं कर सकता एक कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, लोग कंप्लेन करते हैं, दैट मीन्स टाइम फॉर, है ना, चेक बैक, रिव्यू कर लो, देयर इज समवेयर कमजोरी आप में है। एब्सोल्युटली, यू नो सर, एक सेंस ऑफ जजमेंट जो होता है ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो नथिंग यार, जजमेंट ऑफ आर्मी ऑफिसर ना, जजमेंट। करेक्ट, चाहे वो सिविल में हो, चाहे फौज के अंदर हो, एटलीस्ट वर्दी में भी इंसान ही है ना। हाँ, करेक्ट। बेसिक माइंडसेट तो वैसे ही काम करता है। बट ये है कि जिस आदमी की ट्रेनिंग और जिसने थोड़ी लाइफ एक्सपीरियंस देखे हैं, वो शायद ज्यादा कम टाइम के अंदर मजबूत डिसीजन ले लेगा, इतना ही फर्क है। करेक्ट, एंड सही गलत तो दोनों को बताना होना चाहिए। करेक्ट सर। सो सर, मैं पूछ रहा था कि एक सेंस ऑफ जजमेंट जो होती है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, बहुत जरूरी होता है वो, एंड समटाइम्स इट इज टेस्टेड। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस हमने सुने हैं जहाँ पे कि एक अगर आप फौजी हैं तो कई बार आपको रूल्स के दायरे के बियॉन्ड जाके कुछ काम करना पड़ता है टू मेक श्योर दैट द कंट्री इज सेफ। तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर इफ यू probably you have seen someone else doing that or you have done that. I'm good enough to break the rules. You take my calls.
हाउ डज दैट ये वर्क सर? हाउ डू यू मेक दैट डिसीजन कि ठीक है अब जो मैं कर रहा हूँ प्रॉब्ली दिस इज ये रूल्स के दायरे के बियॉन्ड देखिए, है? मैंने बोला हर एक चीज में ना मेरे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है विच प्लेज अगेन एंड अगेन. वन इज, है ना, माई ओन कॉन्शियसनेस, सही और गलत. अब एक चीज सीनियर ने बोली लेकिन वो मेरे को लगता है कि गलत है, डेफिनेटली गलत है. और दूसरी चार चीज है जो एक जवान के हक में है या जूनियर के हक में है, मुझे लगता है सही है नो. तो रूल तोड़ देंगे करके इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज अ वे टू, है ना, थिंग. आप सीनियर हो, गलती आपसे भी हो सकती है, आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, यू आर इन द सेम थिंग. आइडिया शायद सीनियर का भी अच्छा करने का आपका भी है. Yeah. Why can't you walk up to the gentleman and talk कि सर there are 2-3 issues we need to discuss. आप नहीं कर सकते, सीधा रूल तोड़ना है. कर सकते हैं सर. कर सकते हैं ना. दैट्स द राइट वे ऑफ हर एक डूइंग चीज के लिए धरना देना, हर एक चीज के लिए हम कल से काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे, इज दिस द वे? नो. फौज ऐसे काम नहीं करती, ना फौज की सिखलाई है. Yeah. वी आर कॉन्फिडेंट पीपल, हमें सिखाया गया है, प्रॉब्लम है बता दीजिए, दैट. बैठ के बातचीत कर लो. मतभेद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है. वाओ. There can be difference of opinion, but I will ensure I'll go to the last T to ensure that there is no difference in our hearts. या. मन में भेद नहीं मानूंगा, मत में हो सकता है. आपको वो अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है. आपको तीखा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, ठीक है. बट इन एनी केस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि यूनिट के अंदर 10 लोग हैं और 10 अलग अलग तरीके बात कर रहे हैं. जान लगा दूंगा, बट आई ब्रिंग देम टू द कॉमन पॉइंट. या. ठीक है. या. ऑर्डर तोड़ना है, ऑर्डर तोड़ना नहीं, बट इसको ऐसे कहूंगा, सिचुएशन कई बार ऐसी आती है वेयर यू आर आउट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. या. नहीं है सीनियर, मौजूद ही नहीं है, बात ही नहीं हो रही. या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आप बात ही नहीं कर पा रहे हो. यस. सो उसमें इतना इनकेपेबल फील करने की क्या जरूरत है? यू हैव बीन ट्रेन्ड वेल, टेक योर कॉल. फिर कमांडर किस बात के हो? आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है. आपको ट्रेनिंग दे रखी है फौज ने. अगर नहीं है कमांडर तो फिर देन यू आर द कमांडर ना, नेक्स्ट इन चेन. टेक ए बोल्ड एक्शन एंड तब भी चलो. देयर इज नो पॉइंट फाइंडिंग फॉल्ट ना कि सीनियर खराब है ये करके. या. सही है तब कर लो ना. बट हाउ मेनी पीपल आर देयर उसे, कोई कोई होता है जिसको आदत होती है यस सर, हर चीज में यस सर, ठीक है. और कोई कोई होता है जो कहता है नो सर एंड दीज आर माय रीजंस फॉर सेइंग नो, ठीक है. कोई करियर के बारे में सोचता है, कोई कहता है भाई दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, मैं सोल्जर, लूंगा वो चीज जो आपके हक में है. जैसे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मैं ये भी नहीं देखता सॉर्ट आउट करते समय कि वो 10 साल का बच्चा है या फिर 80 साल का आदमी मेरे सामने खड़ा है. मैं उनको बोलता हूँ 100% वो चीज बोलूंगा तुम्हारे को और सुनाऊंगा तुम्हारे मुंह पे जो तुम्हारे लिए अच्छी है, जो ठीक है. आई एम नॉट हियर टू फाइट इलेक्शंस. इलेक्शन नहीं लड़ने मेरे को, ये कुछ होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए. नाराज होता है हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाऊंगा. नाराज होगा सिर्फ एक ही को बनाऊंगा, माई वाइफ. नहीं बनाता किसी को, हो जाओ नाराज, कोई दिक्कत नहीं है ना. इट्स योर कॉल यार, यू नो. करेक्ट. सही गलत होना चाहिए. या. भाई ऑर्डर तोड़ने की क्या नौबत है, आप बात करके खत्म कर दो. सर, one thing that you love about yourself, absolutely love about yourself. जो है क्या करा? He survived me. I survived you. I survived many things in life. See, one thing which I will not say I love about myself, but yes, I will say कि yes, that is with me. जो यहाँ बच्चों से सुना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था. I don't judge people, never ever. तो मुझे बुरा भी बोल देगा, I will not judge you. तो गाली भी दे देगा, you know, I reach this stage यार जहाँ मुझे लगता है ना, तो मेरे को गाली दे दे कि आप ऐसे हो, आप कमीने हो. That makes you happy? I'm okay with it, I'm happy. तो बोले मैं मार दूंगा, वो तू खुश है भाई, कर ले, किसी हिसाब से खुश हो जाओ एटलीस्ट, यू नो. सो आई एम नॉट दिस थिंग. व्हाट आई डू सिंपली, एनीबडी सेज बैड थिंग और व्हाट, सोशल मीडिया कहीं पे है, आई जस्ट पुट माय मैजिकल फिंगर. मैंने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद आए थे ढूंढते हुए. जी सर. आप कमेंट दे सकते हैं, है ना. नॉट दैट यू हैव टू स्पीक गुड थिंग. मैं आज तक स्टूडेंट को नहीं बोला कभी फॉलो करो, मैं बोलता हूँ पढ़ लो, मे बी कुछ शायद समझ में आ जाए, वहीं भी छोड़ देना. नो लाइक नो सब्सक्राइब नथिंग. एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दोज थिंग. कोई पेन में है, किसी को दिक्कत है, कुछ और है. बट तू जिस हिसाब से खुश होता है ना कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मत करो, मैं आपको ये कर दूंगा, तो खुश है कर ले. तो जिस चीज में खुश है वो कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. बट आई स्टिल नॉट जज यू. बट येस, इफ आई ब्लॉक समवन व्हिच आई एम वेरी गुड एट, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज विद मी, यू नो. अगर कुछ चीज मुझे ठीक नहीं लगती तो मैं दिल, दिमाग और फोन तीनों से हाथों हाथ ब्लॉक करता हूँ. वन फोन कॉल, उसी से मैं ब्लॉक. वन मैसेज एंड उसी से मैं इमीडिएटली ऑन ब्लॉक. मैं एक्सेस देता ही नहीं. आई जस्ट वांट पीस इन माय लाइफ. मेरे को 2-4 लोग हैं साथ में, बहुत है, ठीक है. बट आई डोंट जज पीपल, यू नो, दैट इज सम थिंग. एंड दूसरा, आई एम सिंपल. खुश हूँ मैं जैसा हूँ, सिंपल. तो सूखी रोटी दे दे मिर्च के हाथ में, आई एम ओके, ठीक है. मेरा ज्यादातर मैं बोलता कपड़े, घड़ी, मैं यार जो कुछ मेरे पास में ज्यादातर चीजें लोगों की दी हुई है. ये शर्ट किसने दी, मैं ये उसने दी. ये किसने दी,
मैं ये उसने दी, ये कौन लेके आया था, वो लेके आया था, ये वो छोड़ के गया था, गुड, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को ले जा मजदूर के घर में, यहाँ बैठ के खाना है, आई एम ओके विद इट, Yeah. ठीक है। तो मेरे को कहीं ले जा, कुछ दे दे, आई विल नेवर कंप्लेन, शिकायत नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे अपने लिए चाहिए ना, मैं कमा लूँगा, मैं ले लूँगा, बाकी जो दे दिया दूसरे ने वो बोनस है। सो आई एम सिंपल एंड आई डोंट जज पीपल, आई डोंट गिव अप ऑन देम, आई लव देम, Wow. देयर आर ओनली टू Wow. थिंग्स ऐसे, मतलब ठीक लगती है मुझे अपनी बात, Yeah. और तो क्या है। बाकी अब तुझे लगा मैंने कोई स्टाइल मार दिया यहाँ पे, आई डोंट नो। नहीं सर। मैं तो सुबह से सीख ही रहा हूँ, बट मैंने ये बताया था, यहाँ पे आओगे मेरे पास में, मैं लग्जरीज नहीं दूंगा, हाँ, बेसिक्स पूरे कर दूंगा, yeah. दैट इज व्हाट आई सेड। Thank you so much, Colonel Saab, for talking to us. Thank you so much. Thank you so much.